As you know, evolvement delves into the lives of not just people who have faced challenges, but they have overcome those challenges in a unique manner. And they have not just changed their own lives, but are changing the lives of people around them. So, today we are going to learn about this concept of Garbh Sanskar. See, everyone knows about Garbh Sanskar, but I'm sure you all have many questions. And today, I'm really happy, we have kind of cornered Sonal here, that we are going to learn, the A to Z of Garbh Sanskar, whatever you wanted to know. And frankly, Sonal, I have lots and lots and lots of questions to ask you. Looking forward to it, Breen. I'm quite excited. Hi, welcome Sonal. Hi, Breen. Alright guys, so Sonal is Sonal Jaiswal, and she has just written a book which is Manifestations Through Garbh Sanskar, and this is her book. The link will also be attached in the description. But Sonal is such an apt person to come for our Evolvement podcast. So the first thing, when you know about Garbh Sanskar, what was it that got you started? My own journey. Okay. I have 2 kids. My son will just turn 12 in October, and my daughter is 8. They're in 4th grade and 7th grade. So I had a lot of complications when I wanted to conceive my son. I had 2 miscarriages. My son was the 4th IVF and my daughter was the 5th IVF. So I had a lot of complications there. And then even during pregnancy, I had a lot of issues and everything. So for my son, it was a tough journey. But then in that journey, I learned everything. I had the grace of my guru. I am the disciple of Dr. Avadhut Baba Shivanand. And Babaji was there with me throughout. Okay. In बोलते सूक्ष्म रूप में चाहे स्थूल रूप में, in gross or subtle, in whatever form he could, he was there with me throughout, guiding me, hand holding me, sharing all these principles. And that time I actually didn't know what he was doing with me. I was surrendered to my guru. So whatever he taught me, whatever he told me that Sonal, this needs to be done, this, I never questioned. I just did, and in fact I did 10x. If he asked me कि 1 करो तो मैं 10 करती थी, because I was quite greedy. I always knew that there is no free lunch in life and you have to pay the price. Right. And the more premium you want, the higher you have to pay. Wow. So I'm very clear with this concept कि आप थोड़ा दोगे और सोचोगे कि बहुत मिले, वो नहीं होता है. This life is all about give and take. तो अगर बहुत पाना है तो बहुत देना पड़ता है. So I was like, मैं ज़्यादा अगर मेहनत करूँगी तो मुझे और अच्छा मिल जाएगा. I'll be able to manifest much better. Correct. I'll be able to create the kind of child I want. And I did as much as I could. जितना बोला उससे बहुत ज़्यादा और जितना कर सकती थी. And had a simple pact with God कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए. आपको देना है तो मुझे यही देना है, और अगर आपको लग रहा है I'm not doing enough, then I'm ready to do more. Wow. But चाहिए तो यही. So this was the pact with God that I had, because I always feel that I am like a special child. So I share a very child father kind of a mother kind of a relationship with Bole Baba and Ma. So I always talk to them like that. I'm like, बस मेरे को ये चाहिए, अब आप बताओ करना क्या है इसके लिए, मैं ready हूँ करने को. So that was very very clear, and I just did it. But मुझे तब नहीं मालूम था मैं क्या कर रही हूँ. ये गर्भ संस्कार कर रही हूँ, ये मुझे नहीं मालूम था. मेरे गुरु ने बताया बेटा ये करना है, ऐसे करना है, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मंत्र चैंट करनी है, मेडिटेशन करना है, सेवा करनी है, भाव में शुद्धि लानी है, इंटेंशंस पॉजिटिव रखना है, समभाव रखना है. So all the teachings that I've shared here, he asked me to do that. तब मुझे नहीं मालूम था कि teachings किस टर्म में पैकेज्ड है, उसकी पैकेजिंग मुझे नहीं मालूम थी. Because you, मतलब जैसे अभी मैं भी वही बोलती हूँ, people are जैसे आप एक एक चीज जब करते हो, ठीक है, आपको नहीं पता वो क्या रूप ले रही है. जैसे आप एक स्कल्प्टर है, वो स्कल्प्टर कभी हाथ बना रहा है, कभी पैर बना रहा है, एक टाइम के बाद, और उसको मन में उसी को दिख रहा है कि वो क्या है.
हमको जैसे अभी आप गणपति, अभी तो गणपति इज राउंड द कॉर्नर, यू नो, तो जो बना रहे हैं हमको लगता है ये कर क्या रहे हैं, बट जब फाइनल जो गणपति बन के निकलता है, जो यू नो दैट रूप, सूक्ष्म रूप, इट्स अमेजिंग, यू नो. और यही चीज है कि बट यू हैव टू सरेंडर. कोई आपकी मूर्ति बना रहा है, कोई आपको लेके यू नो आपको एक तराश रहा है, आपको एक कहीं पे ढाल रहे हैं, तो वो सोना निखर के निकल रहा है, बट यू हैव टू सरेंडर. सो इट्स नॉट जस्ट आप, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उन्होंने किया, इट इज एक आपको, जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ नो, आप एक जब गुरु ढूंढते हो, आप ऐसा गुरु मत ढूंढो जिसको आपको भी शक है, शंका है. गुरु ढूंढने के पहले आप देखो कि हाँ इसमें ये सारे गुण हैं, इन गुरु के साथ कौन लोग जुड़े हैं, क्या हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्या ये गुरु के साथ रह के हमको एनर्जी आती है. सिर्फ ये नहीं कि लोगों ने कह दिया तो आपने चुन लिया. चुनने के पहले लाइक ये आजकल इतने सारे गुरु बैठे हुए हैं, ढोंगी बैठे हुए हैं. सो आई थिंक यू नो आपने गुरु का बोला, आई वुड लाइक टू से कि पहले उसको समझो वो कौन है. और कोई भी गुरु आपको आसानी से नहीं मिलता है. उसका एक जो एक्चुअल जो गुरु होते हैं वो आपको ढूंढ के ही निकालने पड़ते हैं. गुरु जो शब्द है ना, हाँ, गुरु, राइट, जो अंधकार से प्रकाश में लेके आता है उसे गुरु कहते हैं. तो जो हमारे अंदर में, हमारी आत्मा में जो अंधकार है, हाँ, उसको जो प्रकाशित करता है वो गुरु है. और आपका जो लेवल है ना, आपको उसी तरह के गुरु मिलेंगे. अगर आप ग्रेड 1 में हो तो ग्रेड 1 के गुरु मिलेंगे, ग्रेड 10 में हो तो ग्रेड 10 के मिलेंगे. एंड व्हाट यू सेड व्रेन इज बैंग ऑन, कि आपने अगर किसी को अपना गुरु माना है, उनसे दीक्षा प्राप्त की है, सो यू नीड टू हैव दैट सरेंडर थिंग. यू कांट डाउट, बिकॉज अगर आप डाउट करते रहोगे ना तो फिर आप कुछ सीख नहीं पाओगे. द पाथ ऑफ डिवोशन इज द पाथ ऑफ सरेंडर. You need to be surrendered. So जब आपको लगे कि yes, this is because my dad started the channel आस्था. So आस्था चैनल सभी को पता होगा. आपके पापा का? Yes, oh, yes. wow. मेरे फादर ने शुरू किया है वो चैनल, and I was very deeply involved with him in that. And then वो फिर नया चैनल हमने एक अहिंसा भी शुरू किया. तो I was blessed to like you know get blessed with ऑलमोस्ट ऑल द गुरुज. अब जिनका नाम लो, चाहे वो जैन पंथ के हों, चाहे वो दादा वासवानी जी हों, चाहे मुरारी बापू हों, जितने भी गुरु थे, सबसे मुझे 1-on-1 मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग, उनके पिताजी के साथ तो मैंने पूरा एक दिन बिताया है. फिर ब्रह्म कुमारीज, सब जगह मुझे बहुत प्राप्त हुआ. आई रियली लर्नड अ लॉट. लेकिन जब मैं बाबा जी के पास में गई और मैं वहाँ पे बैठी और उन्होंने जब अपना शिविर शुरू किया और मेडिटेशन की प्रक्रिया शुरू की और मुझे जो अनुभव हुए, तो मुझे लगा कि ये अनुभव मैं ढूंढ रही थी. आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस. राइट. सो मुझे यहाँ से कैलकाटा जाना है, मुझे इंडिगो भी ले जा सकती है, मुझे एयर इंडिया भी ले जा सकती है, मुझे ट्रेन भी ले जा सकती है, मुझे कार भी ले जा सकती है, मैं पैदल भी जा सकती हूँ. ठीक है. सो देयर मल्टीपल चॉइसेस, कोई भी चॉइस खराब नहीं है. लेकिन उस समय आपके लिए कौन सा चॉइस सूटेबल है, दैट चॉइस वर्क्स फॉर यू. तो शायद मुझे बाबा जी के साथ में कनेक्ट मिला. बहुत लोग हैं जिनको आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्ट मिलता है, बहुत लोग हैं जिनको ब्रह्म कुमारी से मिलता है, बहुत लोग हैं जिनको, जैसे आप हो, गुरु ग्रंथ साहिब के टीचिंग्स, उनके डिस्कोर्सेस में मिलता है. सो सब बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है. देयर इज नो डाउट अबाउट एनी पाथ. इट्स जस्ट दैट आपकी कॉन्शियसनेस को उस मोमेंट में क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपके साथ क्लिक करे. बोलते हैं ना, फ्लाइट की वो टाइमिंग, वो प्राइसिंग, वो फैसिलिटीज़ मुझे सूटेबल थी, इसलिए मैंने फ्लाइट बुक कर ली. मुझे और भी दूसरे ऑप्शन थे, बट ऑप्शन सूट नहीं कर रहा था. तो ये नहीं कि दूसरे ऑप्शन खराब है, दूसरे ऑप्शन भी तो दूसरों को लेके जा ही रहे हैं. सो गुरु तो सब बहुत महान है, लेकिन बस यही बात है कि आपको किसके साथ वो कनेक्ट फील होता है. मेरा सो मेरे पास जब कोचिंग के लिए आते हैं ना, सो आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल गाइड, यू नो. तो कितने लोग एक्चुअली आते हैं जो इतने कंफ्यूज्ड होते हैं. ठीक है, वो कहते हैं हम ना हनुमान जी को मान रहे हैं, हम शिव जी को मान रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं, माँ को मान रहे हैं, और इतनी खिचड़ी पका के आते हैं. ठीक है, कोई चीज़ ये कर रहे, कोई चीज़ ये कर रहे, मतलब बोलते ना वो
आई थिंक देयर इज वन मास्टर ऑफ नन, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। एक साधे सब सधे। हाँ। हमारी हिंदी बोलते कि एक को साध लो तो सब सध जाएंगे। अच्छा, तो मेरा उनको इतना ही मैं पूछती हूँ, क्योंकि मेरे ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने बहुत सालों से भी आई मीन दिस फील्ड, तो ये मैंने उनको, अब मेरे पास वो आते हैं, कहते हैं आप तो ना सिखिज्म ही बताओगे। तो मैंने कहा मैं आपको सिखिज्म क्यों बताऊंगी, मुझे बताना ही नहीं सिखिज्म आपको। तो बोलते हैं लेकिन वो कहते हैं शुरू में नहीं आप तो गुरुओं के बारे में बात करोगे। तो आई वॉज लाइक, ऐसे भगवान जो है, गॉड है, वो कोई गलती नहीं करते हैं। अगर आपको भगवान ने एक पर्टिकुलर रिलीजन में डाला है तो उन्होंने गलती नहीं की है कि आप भगवान से बड़े हो, आप सुधारोगे नहीं। आपको आप जैन एक धर्म में हो तो उनको पता है कि आपके लिए जैन धर्म ही सूटेबल है, वो क्यों गलती करेंगे। अगर उनको आपको सिख बनाना तो सिख में डाल देते। अभी आपका जो है सो ये पता है, जैसे प्रारब्ध जिसको कहते हैं, सो जब आप संस्कार बोलते हो तो मेरे मन में हमेशा ये दो चीज़ें आती हैं। एक होता है आपका प्रारब्ध कि आप क्या लिखवा के आए हो, और एक होता है आपके अभी संस्कार जो आप यहाँ से लोगे। एक इनिशियल संस्कार रहते हैं, बट आप जो अभी लोगों से बात कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसको आपने कैसे अपने अंदर डाला और उसको आपने कैसे रिएक्ट किया। सो प्रारब्ध, यस, आप हर इंसान का प्रारब्ध लिखा है। हाँ, किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा दुख है, किसी के कम है। बट जब मैं आपकी स्टोरी पढ़ रही थी, मैंने आपकी बुक पढ़ी, और मैंने आपके बुक लॉन्च पे भी मैं आई, और सर्टेन जब हमने बात की वहाँ पे, मुझे एक चीज़ सोनल आपकी इतनी अच्छी लगी मुझे। जब हम बात करते हैं मिसकैरेज की, एक बच्चा खोना, एक माँ के लिए एक लाइव बच्चा और एक मिसकैरेज में फ़र्क नहीं है। हाँ, एक है कि आपके हाथ में एक लाइव शिशु है और वो चला जाता है, वो बहुत दुख है, बड़ा सेटबैक है, बड़ा। लेकिन आपकी लाइफ में मतलब अगर एक मिसकैरेज भी होता है, वो मिसकैरेज वो भी एक दुख है। yes. उससे निकलना। सो आई नो दिस, क्योंकि मेरे पहले मेरी मम्मी का एक बेटा हुआ था और वो 7 महीने में होके गुजर गया। तो यू नो व्हाट, मेरी माँ का लाइक उसके बाद हम 2 बच्चे हुए, 2 बहनें हुए, लेकिन मेरी माँ का इतने साल तक, मतलब आप सोचो, उसकी फ़ोटो, उसकी चीज़ें, ये उसकी पहली चीज़ थी, इसका जो पहले कपड़ा पहनाते हैं, मेरी माँ ने इतना संभाल के, सो मैंने देखा है ये चीज़ अपने घर में, एंड आई हैव सीन कैसे ओवरकम। और मिसकैरेज, आई नो मेरे फैमिली में और भी लोगों का हुआ है, आई नो इतना टफ फेज होता है उसमें से निकलना और उसमें से कहना कि नहीं मुझे फिर से ट्राई करना है। कितने लोग इस चीज़ को डिप्रेशन में ले लेते हैं, आपने उसको डिप्रेशन में नहीं लिया, आपके लिए वो एक सीढ़ी बनी, इंस्पिरेशन बना कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। मुझे, आपने एक गुरु चुना, आपने साधना की, आपने स्वयं को एक लेवल पे बनाया, और यही जो आपकी इवॉल्वमेंट हुई है, इसके लिए आप इवॉल्व खुद हुए और आप अभी दूसरों को कर रहे हो। सो दैट आपकी लाइफ में, आई नो मैं ज़्यादा ये कह रही हूँ, बट हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ आती, किसके में नहीं आती है। आप जो रिएक्ट करते हो वो आपका इवॉल्वमेंट है। सो दिस इज उस टाइम पे आपके अंदर क्या गया, आपको क्या लगा कि मैं, आपके भी मन आया होगा कि बस भगवान उठा लो, बस मुझे तो इतनी तकलीफ है, वो क्या फीलिंग आई? बहुत टफ था मेरा। जो फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था, हाँ, दैट वाज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन है यूट्रस की जगह ट्यूब में हो जाता है। Okay. तो मेरे ट्विन्स थे और एक का इम्प्लांटेशन यूट्रस में हुआ और एक का इम्प्लांटेशन ट्यूब में हुआ।
तो वो जो ट्यूब में जो इम्प्लांटेशन हुआ वो फिर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, अक्यूट पेन हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई एंड आई वाज इन अ मेस। और अंदर में पूरा लाइक इट वाज रियली रियली बैड। पर डॉक्टर का कहना था कि अगर 5 मिनट्स भी मैं लेट होती तो पता नहीं पॉडकास्ट हम कर रहे होते थे कि नहीं कर रहे होते। Oh my It was that God. situation and luckily my guru वो कभी फ़ोन लेते नहीं हैं, बट पता नहीं मेरा उनका कुछ हॉटलाइन टाइप का हो रखा था। बस मैंने फ़ोन उठाया और वो वहाँ से मुझे मिल गए। लाइक आई डोंट नो, अब ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्या हुआ, बट ही वॉज देयर थ्रू आउट द कॉल एंड ही जस्ट केप्ट ऑन टेलिंग मी, बेटा सांस लेते जा, सांस लेते जा, सांस लेते जा, बिकॉज अगर शायद सांस लेनी छोड़ी तो पूरी छूट जाएगी। सो इट वॉज लाइक दैट टेरेबल एंड देन फिर मेरे ट्यूब्स को पूरा निकाल दिया गया। सो इट वॉज लाइक अ सिजेरियन, कट करके निकालना जैसे होता है, तो पूरा वो पूरा प्रोसेस हुआ। इट वाज लाइक वेरी वेरी टफ एंड देन उसके बाद अगेन दैट वाज इन मार्च, देन अगेन आई टुक एन अटेम्प्ट इन ऑगस्ट। मतलब उस समय मुझे चलना फिरना, मतलब इट वाज एज गुड एज अ बेबी डिलीवर करते हो, बिकॉज वैसा ही प्रोसेस होता है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेजर ऑपरेशन है। इट वाज अ मेजर ऑपरेशन। और फिर उसके बाद फिर अगस्त में वापस से लाइक यू नो आई अगेन ट्राइड, बट उस समय इम्प्लांटेशन बराबर नहीं हुआ, तो उसके कारण ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो फिर 1.5 महीने में अगेन वो हो गया, मिसकैरेज फिर हो गया एंड देन इट जस्ट वेंट ऑन। ये मेरा शायद बिगनिंग अक्टूबर में मेरा मिसकैरेज हुआ। फिर नवंबर में अपने आप से बाबा जी ने मुझे कहा कि भाई अगर बेटा तुमको लाइक यू नो यू हैव टू डू दिस दिस दिस, आई एम विथ यू प्रोवाइडेड यू डू ऑल दीज थिंग्स। आई सेड आई विल डू मच मोर देन दिस, बट आई नीड यू। आप मेरे साथ हो तो आप जो बोलोगे मैं उससे कई गुना ज़्यादा करने को तैयार हूँ। एंड देन वहाँ से लाइक यू नो फ्रॉम नवंबर दैट अ डीप spiritual journey started. So he gave you some mantras to do? Yeah, he asked me to do meditations because we went to Shiv Yog, so हम साधना करते हैं, श्री विद्या साधना, शांभवी साधना, ऐसे हमारे meditations होते हैं। तो he asked me कि भाई बेटा इतने number of times आपको साधना करनी है और आपको योगा करना है, सूर्य नमस्कार करना है। तो मैं 108 सूर्य नमस्कार करना मैंने शुरू कर दिया। वाओ फटाफट मॉर्निंग मेरी योगा, उन्होंने कहा कि you need to have a personal yoga trainer who should come and train you properly and under the trainer's guidance you should do। तो ट्रेनर आती थी मॉर्निंग में और मैं बस, उन्होंने कहा सूर्य नमस्कार, तो मैं तो बिल्कुल, मैं बोली ना वो एक कहते थे तो बस बहुत लालची थी मैं। लगता था कितना बेस्ट कर सकूं। पहले 108 is a good number, it's the most divine number, it's the most divine number। पहले मैं 108 ही करूँगी। चले 108 करोगे आप? मैं बोली हाँ मैं 108 करूँगी। आज डू 100 सूर्य नमस्कार, फिर उसके सारे योगा आसन्स होते थे, वो सब पूरा करती थी, प्राणायाम वगैरह करके स्पी फॉर ऑफिस। और वो मुझे रेगुलर, मैं हर थोड़ी देर में मैसेज कर दे, मैम आई यू ओके, आई यू ओके। लाइक प्लीज़ मुझे क्यों परेशान करते हैं, हम ऑल ओके। बोली नहीं, मुझे बड़ी टेंशन होती है कि अब इतना कुछ करके ऑफिस चले गए। फिर उन्होंने मुझे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ साधना दे के रखी थी, तो ऐसा होता था कि रात तक जब मैं साधना करती थी तो लिटरली मुझे नींद के झोंके आ रहे होते थे, और बट आई वाज लाइक नहीं मुझे इतने टाइम्स तो करना ही है, तो मैं उतने टाइम्स करती थी। एंड लाइक यू नो काफ़ी अच्छा हुआ। एंड देन फिर बाबा जी का शिविर था फेब में, आई मेट हिम एंड आई आस्क्ड हिम दैट सब कुछ। बस वो शिविर के तुरंत बाद आई वाज गोइंग फॉर माई 4th IVF cycle। So I was like feeling very jittery, आप समझ सकते हो, I was feeling very jittery कि मेरी 3 ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसमें 3 में 2 मिसकैरेज हो गया था। So कैसा एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होता है। So I was like बाबा जी सब ठीक है ना? He was like ये ना शब्द कहाँ से आ गया? सब ठीक ही है। और वो जो उनका सेंटेंस था सब ठीक ही है, सिर्फ उस समय नहीं, आज तक भी कभी भी लाइफ में कुछ भी कंफ्यूजन्स होते हैं ना, सब ठीक ही है। बोलते हैं ना गुरु वाक्यम परम वाक्यम, तो गुरु का जो वाक्य होता है ना वो टेप रिकॉर्डर की तरह चलता है और राइट सिचुएशन में वो पॉप कर जाता है। तो सब ठीक ही है, वो जो ही शब्द था ना उसने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया कि आई जस्ट वेंट बैक एंड आई गॉट माई थिंग डन एंड इट क्लिक्ड। और पूरी प्रेगनेंसी मेरी, एंड आई वाज लाइक यू नो
a very social, हाँ. a very बोले ना chirpy kind of a personality कि यहाँ ये काम करूँगी वो काम कर, मतलब मैं एक जगह टिक नहीं सकती थी. I was that kind. ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन no, I had full agenda. But because इतने ट्रबल से मेरा सब होता तो डॉक्टर आस्क्ड मी कि नहीं, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा रेस्टेड कंडीशन में रहो. आई वॉज नॉट एज सच ऑन बेड रेस्ट, बट इट वॉज मोर ऑफ अ हाउस रेस्ट फॉर मी. यू कांट मूव आउट मच, डोंट रोम अराउंड मच, आप जितना हो सके सेटल्ड रहो. सो आइडियली वो मेरे लिए पनिशमेंट होना चाहिए था, बट इट टर्न टू बी अ बोन इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग, बिकॉज वो पूरे पीरियड को मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया. अपनी मेडिटेशंस, मंत्र चैंटिंग, स्क्रिप्चर्स सुनना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, देवी भागवत, ये सब जितने पुराण थे सब चीज़ को सुनना करना. लाइक मतलब ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग की रात की रूटीन इतनी टाइट स्केड्यूल्ड होती थी कि कोई अगर मिलने आ जाता था ना तो मुझे लगता था कि भाई मेरा टाइम जा रहा है, ये कब जाए कि मैं कंप्लीट करूं. हाउ विल आई एबल टू कंप्लीट माय स्केड्यूल. मेरा स्केड्यूल इतना टाइट होता था. आप तो तराश रहे थे ना, आप भी तो अपने आप को भी और अपने होने वाले बच्चे को आप वो चीज को तराश रहे थे. कहते हैं कि जब गर्भ में बच्चा होता है और आप ये सारे काम करते हो, तो कर्मों की निर्जरा होती है. तो जब आप प्रेग्नेंट, निर्जरा मीन्स हमारे कर्म है, जैसा आप प्रारब्ध कह रहे हो, तो प्रारब्ध वो कर्म है जो आप अपने साथ लेके आते हो. अच्छा, हमने कर्म की बात कही तो थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा डीप चले जाते. हमारे जो कर्म है वो 4 प्रकार के कर्म है: संचित, प्रारब्ध, फिर अपना वर्तमान और आगामी कर्म. ऐसे हमारे 4 कर्म होते हैं. तो संचित कर्म वो कर्म है जो हम कई जन्मों से इकट्ठे करते जा रहे हैं. ओके, मतलब नहीं किए लेकिन करते करते वो हमने, जैसे वो गठरी है, हमने बढ़ती जा रही है. हर जन्म में हमारी गठरी बढ़ती जा रही है. करेक्ट. हाँ, तो वो गठरी हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो वो हो गया संचित. बट हर जन्म जो हम लेते हैं, हम सारे के सारे संचित कर्म नहीं लेके आते हैं. वी सेलेक्ट some of the karmas and those selection are called prarabdha. So you know in my जब मैं गेमी जो मेरी बुक आ रही है ना, इवॉल्वमेंट बाय द वे, तो उसमें इसका मैंने जिक्र किया है. मैंने इसको बहुत एक इंग्लिश तरीके से और एक हल्के तरीके से लिखा है, बट आई कॉल इट द गेमीवर्स. क्योंकि आपका जैसे आप एक गेम खेल रहे हो, आप एक सिलेक्ट करते हो ना कि मेरी गेम में मेरा क्या रूप होगा, मैं ये करूंगा. जैसे एक समझो कार रेसिंग, आप सोचते हो कि ये कलर की गाड़ी होगी, ये कलर के कपड़े पहने हैं, ये कलर का ये है. तो जैसे आप अपने आप को एक एवटार जिसको सिलेक्ट करते हो ना, ये वही संचित कर्म है जो आप अपने गेमीवर्स में डालते हो. सो इट्स अ वेरी इजी वे ऑफ टेलिंग पीपल कि ये संचित, देते बोले कि संचित कर्म मतलब बहुत भारी है, बट ये वही चीज है कि आप एक गेम खेलने के लिए भी आप अपने आप को एक रूप ढाल देते हो. तो जब हम यहाँ आते हैं, हम सिमिलर तरीके से एक सोच के आते हैं कि हमको ये इस चीज से गुजरना है, और हाँ, लेकिन ये है कि उसको कैसे आप रिएक्ट करोगे वो आपके संस्कार है. यस या सो इट्स लाइक कि आप एक योद्धा हो, हाँ, एक फाइटर, राइट. जैसे आपके गेम वर्स में एक फाइटर, करेक्ट. तो वो फाइटर के पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, हाँ, बहुत सारे अलग अलग तरह के, वो सारे उसके संचित कर्म है जो उसने इकट्ठे किए. लेकिन वो जब कोई एक फाइट में जाता है, एक पर्टिकुलर फाइट में, लाइक मैं इस अवतार को लेके मैं इस गेम को खेलने जा रही हूँ, राइट. तो जब वो उस गेम को खेलने जाता है तो वो सबको लेके जाता है, वो देखते हैं इस गेम की मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव, हु इज माय ओपोनेंट, एंड उसके हिसाब से आई नीड दीज स्ट्रैटेजीज. सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्ट्रैटेजीज ही पिक्स, ही सेलेक्ट्स सम ऑफ द कर्मास, और वो उसको अपने तरकश में डाल देता है. These are my karmas for this particular life. That's प्रारब्ध. राइट. तो वो अवतार लेके वो योद्धा आता है. फिर उसके बाद क्या होता है, फाइट शुरू होती है, ओपोनेंट मारना शुरू करते हैं, तो अब ये योद्धा को भी मारना है, तो वो अपनी तीर निकालता है और अपने इसमें लगा देता है. तो जैसी वो तीर चढ़ाता है अपने कमान में, तो क्या होता है, जैसी वो चढ़ाता है वो प्रारब्ध कन्वर्ट हो जाता है वर्तमान कर्म में. अभी तक वो प्रारब्ध था, प्रारब्ध यानी वो इट वाज इन अ डोर्मेंट स्टेट. करेक्ट. संचित कर्मास आर डोर्मेंट, प्रारब्ध आर डोर्मेंट, दे डोंट डू एनीथिंग टू यू. करेक्ट. व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड, व्हेन फ्रॉम प्रारब्ध यू एक्टिवेट देम एंड दे बिकम वर्तमान, यानी कि आप अपने तरकश से वो तीर को निकाल के अपनी प्रत्यंचा पे जब चढ़ाते हो
हाँ. तो प्रत्यंचा पे जैसी वो तीर चढ़ती है, हाँ. वो एक्टिवेटेड हो जाती है, Yes. वो वर्तमान हो जाती है, और फिर जैसी वो वर्तमान हो जाती है, अब वो एक्टिवेटेड कर्माज है। ना प्रारब्ध हमें कोई हार्म करता है, ना संचित कोई हार्म करता है, लेकिन वर्तमान अब अपना रिजल्ट दिखाएगा। योर रिएक्शंस, यस, वो रिजल्ट आप जो दिखाएगा। अभी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइक एक चीज मैंने लोगों को कहा है, जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने ये कर्म किसी का बुरा किया, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ और भी करना था जो आपने नहीं किया। सो जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ कर्म वही है जो आपने काम किया, बट आपने जो नहीं किया। सो यू नो, इसी को हम लोग लेंगे गर्भ संस्कार। ये नहीं है कि आपने क्या किया, ये ऐसा भी है कि आपने क्या नहीं किया। आपका जो है, एंड आई लव द फैक्ट दैट आपने सिर्फ इसको गर्भ संस्कार के बारे में नहीं बोला, आपने कहा है मैनिफेस्टेशंस थ्रू गर्भ संस्कार। सो बच्चे सबके ही हो रहे हैं, लेकिन कोई लोग हैं जो एक स्टेप आगे जा रहे हैं और एक अपने आप को अलग से ढाल रहे हैं और कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर बीइंग बोर्न एवरी डे, बोलते ना पर सेकंड कितने बच्चे हो रहे हैं, वो तो वर्ल्ड में हो ही रहे हैं, बट सारे लोग ये कर्म नहीं कर रहे। और आप उसको वर्तमान कर्म में जब आप डालते हो, एंड स्पेशली नाउ वी शुड टॉक अबाउट योर बुक। बहुत सारी मैंने आपकी बुक पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ समझा है। एंड मुझे इसके ऊपर अभी आपको आई वांट, बिकॉज मुझे अभी ये स्पेसिफिक आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे इसको डिकोड करना है, एंड आई थिंक यू नो आई रियली वुड वांट टू गेट इनटू दैट। सोनल, जब आपने ये देखो, आपके खुद के तो बच्चे हो गए एंड यू नो, लेकिन आपने ये कैसे सोचा कि आप इसको दूसरों तक लेके जाओगे? एंड जब वो आपने चालू किया, कितने साल पहले ये चालू किया, एंड आपको क्या लगता है आपका ये क्या रोल, कैसे ये बना? इट वॉज एक्चुअली अ डिवाइन ग्रेस, गॉड्स कॉलिंग। राइट। भगवान क्या होता है ना, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में ऐसे ही नहीं करते ना। नो इंसिडेंट हैपन इन योर लाइफ बाय फ्लूक। ठीक है। एवरीथिंग इज क्राफ्टेड, एवरीथिंग इज डिजाइंड, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर यू। सो जब मैं इस दौर से गुजर रही थी विद मिसकैरेजेस एंड सो मच ऑफ ट्रॉमा एंड सफरिंग, मुझे कई बार लगता था कि मैंने तो कुछ ऐसा कभी गलत किया नहीं। ऑलवेज बीन अ वेरी सिंपल एंड अ नाइस सोल, हेल्पिंग एवरीबॉडी, बट व्हाई मी, राइट? तो ये वाई मी का आंसर हमेशा रेट्रोस्पेक्ट में आता है, उस समय नहीं आता है। सो रेट्रोस्पेक्ट गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो नहीं आता था, बट यस वो था कि भाई हर चीज तो सही ही किया है, कभी किसी का खराब नहीं किया और हमेशा सबको हेल्प ही किया है, तो फिर क्यों ऐसा? बट ठीक है, कभी भगवान को क्वेश्चन भी नहीं किया, अगर है तो है। और मुझे इतना मालूम है, मेरे गुरु ने सिखाया है कि तुम ही करता, तुम ही भोगता। इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सो अगर कुछ सही नहीं है तो तुम्हारे कारण सही नहीं है, और अगर कोई चीज तुम्हारे कारण सही नहीं है तो उसके सोल्यूशन भी तुम हो। इफ यू आर द प्रॉब्लम देन यू आर डेफिनेटली द सोल्यूशन। सो अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा मेरे लाइफ में, तो दुनिया में और किसी के पास ताकत नहीं उसका सोल्यूशन लाने का। करेक्ट। आई हैव द पावर टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई प्रॉब्लम। How did you start changing? मतलब वो first Yes. कौन लोग थे जो आपके पास आए और आपको लगा कि ये मैं इनको they have got inspired by you? Yes, or I'll just share. So what happened after my son was born? So I was full time into coaching and I was a motivational speaker. I was writer. I had monthly column in ET, weekly column in Lokmat. I used to travel everywhere. Right. I got a lot of awards also. But जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया, वो कंसीव करने के बाद में just certain spurt of the moment में मेरे पास थॉट आया कि I can't get distracted. I need to focus. तो मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी, मतलब एक सेकंड में छोड़ दी। आई थिंक बैक बर्नर पे रख दी काइंड ऑफ। उस समय के लिए तो छोड़ दिया था। हाँ। तो बाद में वापस रिवाइव किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं तो भूल भी चुकी थी कि मैं ऐसा करती भी थी, बट उस समय के लिए उसमें डिसीजन था कि नो,
दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी एंड आई एम वेरी हार्डकोर प्रायोरिटी पर्सन हाँ. कि मेरी जब जो प्रायोरिटी मुझे वो करना है. तो राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज माई चाइल्ड Right. एंड नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. सो आई कांट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ कि मैं कुछ लिख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ. नो, I'm just focusing on my child and as I shared, I had a very tightly scheduled routine, so I had no this thing. तो मैंने सब हाँ. छोड़ दिया था. फिर मेरी daughter and but I continued working with my husband's organization because I was heavily involved. Yeah. But वो भी after my son turned 6 months. नहीं तो पूरी pregnancy 6 months के लिए मैंने वो भी छोड़ दिया था. तो जब मेरा बेटा 6 months का हुआ, उसका अन्नप्राशन मैंने किया. When he started eating like you know other than my feed, जब उसने फूड लेना चालू किया तब मैं ऑफिस जाना शुरू की. ऐसा स्केड्यूल करके कि वो सोता था, मैं जाती थी, फिर मेड लेके आ जाती थी एंड वी हैड थिंग्स वर गोइंग ऑन. तो आई कंटिन्यू वर्किंग फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. देन आई कंसीव माई डॉटर. मैंने कंसीव माई डॉटर, मैंने वो भी छोड़ दिया बिकॉज सन एंड डॉटर लाइक यू नो हैड टू फोकस ऑन बोथ. सो मैं नहीं कर सकती थी. एंड वो 3-4 साल बीत गए एंड देन कोविड स्टार्टेड. कोविड हैज़ गॉट डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी. बहुत सैड भी हैं बट लाइफ इज ऑलवेज यू नो शेड्स ऑफ ग्रे. सैड भी होता है तो कहीं कहीं कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं. तो फॉर मी कोविड वॉज अ पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक टू वॉट आई लव डूइंग द मोस्ट. मैं भूल चुकी थी मेरे सारे नोट्स, मतलब मैं लिखती थी, बहुत लिखती थी. ऐसे मेरे बड़े बड़े फोल्डर्स बने हुए, मेरे हैंड रिटन. मेरी ह्यूज लाइब्रेरी है, सब कार्टन में सारे पैक्ड थे. ओके. फॉर 10 years ऑलमोस्ट पूरे पैक थे. मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैं क्या करती थी. कोविड जब शुरू हुआ तब Zoom started and it just like 1 month after COVID it struck me कि हमें कुछ करना चाहिए because I found everybody feeling very depressed at home. So कुछ अच्छा करना चाहिए. Call my dad and my dad is like very very social. So I called my dad and said that let's start a 1 hour What's your session. dad's name? Mr. Santosh Jain. So I didn't know about आस्था चैनल by the way. I mean and उन्होंने बहुत लोगों के लिए आस्था किया है because I know so many people जिनका दिन आस्था चैनल के बगैर नहीं चालू होता है. So I think I'm very thankful to him as well. So हाँ. So I called my dad and I said that let's start doing these Zoom sessions. And he said that okay we can start but then you have to take full responsibility of running it. I said okay I'll do that. So हमने Zoom session शुरू किए. Won't believe 100 से शुरू किया हमने and I was connected with a team of healers and speakers. और फिर और connect बोलते हैं ना, आप जब बढ़ते हो तो connect होते जाते हैं अपने आप. like attracts like. तो हमने शुरू किया एवरी डे के हम सेशन स्केड्यूल करते थे. स्पीकर्स आते थे. 100 की कैपेसिटी शुरू किया, वो 100 500 हुआ, 500 1000 हुआ. और ऐसा हुआ कि 1000 की कैपेसिटी का हमारा जूम दिन में हम 2 से 3 सेशन लेते थे. और वो सेशन का जो टाइम था 1:45 बजे. ठीक है. पैक. कई बार ऐसा होता था कि स्पीकर को आने के लिए जगह नहीं बची है बिकॉज जूम पैक हो गया है. तो मैं रिक्वेस्ट करना था प्लीज लाइक यू नो आप कुछ लोग हटो सो दैट द स्पीकर कैन कम इन लाइक. एंड आई यूज्ड टू टेक सेशन. जैसे वी हैड अ टीम ऑफ स्पीकर्स तो मैं एवरी लाइक 4th और 5th सेशन मैं ले लेती थी, कोई और स्पीकर ले लेता था. ऐसे वी वर लाइक टीम ऑफ स्पीकर्स जो हम रेगुलरली अलग अलग टॉपिक्स पे हम सेशंस लेते थे. सो इस तरह से मेरा वापस से टू द वर्ल्ड ऑफ मोटिवेशन, स्पीकिंग, काउंसलिंग, राइटिंग मेरा कमबैक हुआ. बट व्हाट ऑटोमेटिकली यस नाउ I'm coming. मेरे को ना ये आई मीन यू नो टाइम चला जाएगा बिकॉज मेरे को गर्भ संस्कार है सब. फिर जब मैं ये सब कर रही थी तो मेरे पास फोन आया डॉक्टर अनीश जैन का. ही डज लॉट ऑफ वर्क ऑन गर्भ संस्कार. तो वो जैन पद्धति से करते हैं, भक्तामर गर्भ संस्कार कराते. तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि सोनल आप प्लीज़ आप मेरे जूम में आके गर्भ संस्कार के ऊपर में सेशन लो. तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे पता तो नहीं कि गर्भ संस्कार क्या है but I have done a lot in my own journey. So I can compile those lessons together and I can take a session. Correct. तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई आप सेशन लो. तो हमने 3 दिन का फिक्स किया. That was in the month of July, 4 years before. 2020. 2020 I guess. Yes. वो कोविड का पीक पीरियड एकदम पीक कोविड टाइम. राइट. तो उस समय बहुत मदर्स डिप्रेस्ड रहती थी. एंड
उस समय भी ऐसी घटना हुई कि जिस दिन मेरा फर्स्ट सेशन जूम का होना है, मॉर्निंग में हमारी काफ़ी बड़ी गौशाला है नागपुर में, जिसमें हमारी ऑलमोस्ट मोर देन 300 देसी गौ माताज हैं। तो माई हस्बैंड वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली और वो गौशाला गए तो वहाँ फिसल गए, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। मुझे 3 बजे सेशन लेना है एंड मॉर्निंग 7 o'clock he fell down and he fractured his hand. Oh my God. और उस समय मैं अपनी पीपीटी बना ही रही थी कि और कंस्ट्रक्ट कर रही थी कि मुझे क्या बोलना है, बिकॉज दिस वाज समथिंग आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कि गर्भ संस्कार होता क्या है। आई थॉट समथिंग रिलेटेड टू यू, व्हाट यू डू फॉर द बेबी, सो व्हाट आई डिड आई विल शेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज एक्चुअली। सो आई वाज जस्ट कंपाइलिंग ऑल माय थॉट्स टुगेदर, मैं पीपी टुगेदर, ऐसा हो गया। फिर डॉक्टर के पास गए एंड देन आई थॉट दैट आई विल क्विट एंड आई वोंट डू, हम अनाउंस कर देंगे। बट माय हस्बैंड इज वेरी एनकरेजिंग, सो ही इज लाइक कि मेरा ऑपरेशन 2 दिन बाद होना है, अभी मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, तो मेरे बगल में बैठेगी चाहे ना बैठेगी, मेरे को जो पेन होना है वो होना ही है। उल्टा तुम काम छोड़ के बैठेगी तो मैं और सैड फील करूंगा, तो बेटर यू डू व्हाट यू आर डूइंग। सो आई टुक माय सेशन, इट वाज अ रन अवे हिट। फिर सेकंड डे का भी सेशन लिया, थर्ड डे का जो सेशन था उस दिन मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था, थर्ड डे का हमने 4th डे फिर रीस्केड्यूल किया। ऐसे 3 दिन का सेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टर मंजू जैन केम टू माई हाउस with a form, a PhD form, and she's like, Sonal, sign this form. I was like, what is this form? बोले PhD का है। बोले मैं क्या चीज़ पे PhD करूँगी? She's like, तुमने अभी जो गर्भ संस्कार पे सेशन लिया ना, that's no less than a PhD work. Wow. You do your doctorate in गर्भ संस्कार, and I was like, मुझे पता ही नहीं गर्भ संस्कार होता क्या है। मैंने वो सेशन दिया जरूर एंड आई गॉट लाइक स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट एंड पीपल लव्ड इट, बट आई डोंट नो, बोले नहीं नहीं, यू हैव टू डू साइन, करो साइन, ठीक है, साइन कर दिया। This is so, it's so, it's just I'm literally getting like, oh my God, like कहाँ से कहाँ आप चल जाते, आपको पता ही नहीं होता कहाँ से है, कौन सी चीज आपकी तराशी जा रही है। यस। तो मैंने साइन कर दी और फिर इमीडिएटली मैं तब सेशंस लेती थी, तो मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ग्रुप्स बने हुए थे, लाइक ऑलमोस्ट 6 ग्रुप्स बने हुए थे। कितने, मतलब 250 अगर हर ग्रुप में होते हैं तो 1,500-2,000 के करीब लोग मुझसे कनेक्टेड थे। सो मैंने तुरंत उस ग्रुप में डाला, because PhD means real research. Correct. So you need real people on whom you can work. Right. तो मैंने उस ग्रुप में डाला कि भाई I have enrolled myself for a doctorate in गर्भ संस्कार. So any woman who wants to conceive or already pregnant, checking out pregnancy, can join my group because I'll be doing a lot of research and lot of sessions and all those stuff. Got it. आप believe नहीं करोगे, 1 घंटे के अंदर 150 से ज़्यादा लोगों ने मेरा वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। Wow. And I was like, this is pregnant women and जो कंसीव करना चाहती हैं, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी दोनों को ही हम गर्भ संस्कार में डील करते हैं जी। तो 150 से ज्यादा उन्होंने ज्वाइन कर लिया इन जस्ट 1 hour। मैंने अपने ग्रुप्स और कहीं मैंने पब्लिश नहीं किया, ओनली माई ग्रुप वेयर आई रेगुलरली टेक सेशंस, जो मैं जूम पे पिछले 1-1.5 साल से पूरे कोविड में ले रही थी और लोगों ने ज्वाइन किया था। दैट वाज माय पर्सनल ग्रुप, इट्स अंडर नेम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ज्वाइन कर लिया एंड आई वाज लाइक, दिस इज गॉड्स कॉलिंग, नाउ आई कांट टेक अ स्टेप बैक। यानी कि कुछ तो है इसमें आपके लिए। भगवान ने, ईश्वर ने ये लिखा था। ये लिखा था। और मुझे एक और फीलिंग आई कि आप लाइफ में कुछ भी फेस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, कुछ रॉन्ग कर्मास किए, इसलिए आपको सफरिंग हो रही है। लाइफ में नथिंग हैपेंस जस्ट लाइक दैट कि ऐसे ही फ्लूक, नथिंग इज ऑफ फ्लूक, इट्स ऑल अ रिजल्ट ऑफ सम डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने पिछले जन्म में कुछ तो भी गड़बड़ किया था इन टर्म्स ऑफ कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, मदरहुड, वट एवर, आई डोंट नो, कि मुझे इतनी तकलीफें आई। दैट मीन्स दिस इज माई टाइम टू रिपे। तो मैं जितने भी काम करती हूँ, दिस इज ऑल सेल्फलेस सर्विस। लाइक आई रिमेम्बर, मैंने ना लिंडा गुडमैन की बुक है स्टार साइंस, यस, तो उन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा है। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आपने समझो अपने कोई लाइफ में, ये उनका पर्सपेक्टिव है ऑब्वियसली क्या है, बट आपने कोई अपने लाइफ टाइम में समझो आपने किसी बच्चे को इल ट्रीट किया है या किसी बच्चे को वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, तो आपको इस जन्म में बच्चों का प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अभी जैसे ये देखा गया है, दिस इज आई थिंक दिस इज अ स्टैटिस्टिक के चाइल्डलेस कपल्स जब एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो दे आर सेइंग कि हाँ, हम एक बिन माँ बाप के बच्चे को हम प्यार देंगे, हम उसको घर देंगे। और देखा गया है कि उसके बाद उनका खुद का बच्चा भी जल्दी हो जाता है।
सो इस कहीं ना कहीं आप वो कर्म को करते हो। काट रहे हो और आपका वो संस्कार आप एक अलग से डाल रहे हो। तो you know, मेरे हाँ। मेरे गुरु ने, बाबा जी ने, मैंने कहा ना बहुत सारे मुझे ये भी कहा गया था कि बेटा अनाथालय जाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, हाँ। उनके लिए समय निकालो, उनको कुछ सिखाओ, उनको कुछ करो। तो मैं रेगुलर बेसिस में यूज्ड टू गो टू दीज प्लेसेस, स्पेंड टाइम, टीच देम समथिंग, गेट लॉट ऑफ गुडीज फॉर देम, उनको बांटती थी, उनके साथ खेलती थी, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती थी, एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट। आपने जो बोला ना, ये जो चीज आपने देखो, yes, आपने इसको मैं कर्म इसको कहते हैं कर्मों की निर्जरा करना, डिसॉल्विंग योर डिसॉल्विंग एंड नहीं, अपने आप को ना एक दायरे से निकालना। सी हम क्या करते हैं ना, जैसे अब आजकल तो बहुत कॉमन है, माँ बाप से बात नहीं करनी है, हम अलग रह जाएंगे, ठीक है, इन लॉज नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप हमको फ़ोन करके आइए, आप ऐसे क्यों आ रहे हो। सो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा आज ये जॉब अच्छी नहीं लगी तो इसको छोड़ दो। सो पीपल क्या कर रहे हैं ना, वो अपना दायरा जो है ना सीमित कर रहे हैं, वो अपने आगे पीछे लोग जितने चाहिए उतने ही रखें, एंड उस करके क्या होता है ना, आप अपने कर्म सॉल्व ही नहीं कर पाते हो, आपको पता ही नहीं कि आपको ये चीज में से कैसे निकलना है। टू फेस हर रंग, जितने भी रंग हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। आपको एक रंग नहीं पसंद है तो बस मुझे ये रंग, आज के बाद ये रंग मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए मर गई, वो मेरे लिए मर गया, ये चीज़ लाइफ में नहीं होती है। आपका दायरा, आपको देखना है कि मेरा दायरा कहाँ कहाँ तक जाता है। जो लोग आपके साथ जिससे जन्म हुआ है, जहाँ पे आपकी फैमिली है, वो क्या कनेक्शन है आपका, यू हैव टू मेंटेन दैट, यू नो। एंड आई थिंक वन थिंग जो मुझे लगता है, आजकल डॉक्टर्स, हम सब मेडिकल फील्ड को बहुत करते हैं, हम मेडिकल है, यू नो, लोग साइंस साइंस जिसको कहते हैं, कि ये लगता है कि ये क्या चीज़ है, ये तो ऐवी बात कर रहे हैं। बट इमेजिन, आप जैसे लोगों को कहते हो कि अच्छा यू वांट टू ट्राई फॉर प्रेगनेंसी, तो आप एक काम करो, आप ना स्मोकिंग छोड़ दो, आप दारू छोड़ दो, ठीक है, ये सब ड्रग्स वगैरह, कुछ दवाइयाँ मत लो, ये मत लो, ओके। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। क्या बॉडी को ही तैयार करना काफ़ी है? बॉडी के अलावा आपका मन, आपके इमोशंस की शुद्धि, यहाँ पे आपका इमोशन लेवल ही नहीं है, तो आपके अंदर प्यार ही नहीं आ रहा है, तो आप बच्चे को क्या संस्कार दोगे? सो मोर देन, यू नो, जब मैंने आपकी थोड़ी चीज़ें जो पढ़ी, लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू द होल बुक, आई फेल्ट, यू नो, दैट ये जो चीज़ आपने बताई, सिर्फ बॉडी को तैयार नहीं करना है, आपके इमोशंस को तैयार करना है। फ्रेंड, आप तो इस पे बहुत काम करते हो कि हमारे पंचकोशास हैं। हाँ, तो मेरे प्राणमय कोश is the physical body, right. so that's only one of the koshas and that's the weakest kosha. हाँ. उसके अलावा जो हमारे 4 सूक्ष्म शरीर हैं, वो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं, बट प्रॉब्लम इज हम खाली जो वीकेस्ट बॉडी उसी पे फोकस करके रह जाते हैं, हाँ. बाकी 4 जो स्ट्रॉन्ग बॉडी उसका क्या। सो जैसे अभी जैसे वो इमोशनल लेवल है मदर का, मेंटल लेवल है, फिजिकल तो चलो वो लोग देख लेंगे, पर ये जो है सो स्टेजेस जो है, ओके। तो जो मुझे समझ में आपका आ रहा है कि आपने प्री स्टेज पे भी काम किया। सो मुझे लगता था कि गर्भ संस्कार सिर्फ वंस यू गेट प्रेग्नेंट, तो ये आपको ये करना है, आपको पाठ करना है, आपको पूजा करनी है, आपको मंत्र करने हैं, बट ये मुझे थोड़ा, आई लव द फैक्ट कि आपने लिखा है कि प्री स्टेज भी है। सो क्या स्टेजेस हैं, ये क्या है, और ये लोग इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में डालेंगे, पीपल हु नाउ, विमेन हु वांट टू गेट प्रेग्नेंट। हाँ, अब कौन सा पेड़ सबसे अच्छे फल देगा? जिसका सीड सबसे स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? द सीड सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, कि भाई सीड मेरा कितना अच्छा है, ठीक है। तो वो सीड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? वो है कंसेप्शन स्टेज। अच्छा। बिकॉज प्रेगनेंसी में तो सीड आ चुका है, हाँ, वो सोल आ चुका है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। बट कंसेप्शन में क्या होता है कि वो सीड आने का, वो सीड को इन्वोक कर रहे हो। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में वो सारे सीड्स हैं, सारी आत्माएं एस्ट्रल वर्ल्ड्स में है। ठीक है। वो एस्ट्रल वर्ल्ड में धरती पे आने के लिए
इंतजार कर रही हैं, Okay. उन्होंने अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखी है, उनकी अपनी एक एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पे एक मदर है हाँ। जो अपने वूम को तैयार कर रही है कि भाई वो एक सोल को धारण करेगी। ओह। तो वहां पे वो आने के लिए इंतजार कर रहा है, यहाँ पे वो लाने का इंतजार कर रही है। अभी मैचिंग कैसे होगा? नहीं, सो यू नो आई मीन ये चीज़ मेरे मन में हमेशा ये आता है हाँ। कि अब देर आर सो मेनी पीपल, इफ यू सी के मतलब स्लम्स वगैरह है, देखो हर इंसान के इतने इतने बच्चे हैं, ठीक है, और उनके बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं आती है, कुछ नहीं है। हम यहाँ पे हम लोग डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं, हम लोग एक बच्चे को, और वो लोग क्या बोलते हैं कि हाँ बाकी लोग बच्चे नहीं कर रहे, आपके बच्चों के लिए इतनी आपको तकलीफें हो रही है, आपकी बॉडी ये है। I'll come to it. एंड सो आई ऑलवेज सेड दैट कि एक राजा को जन्म लेना और किसी और को जन्म देना में फर्क होगा। आत्मा में फर्क है, और आपकी आत्मा जो आपके पास जो शरीर में आ रही है, जो बच्चा आ रहा है, उसके लिए माँ को भी तो घालना करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वैसा बच्चा अगर आपको चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज इट्स मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मैचिंग ऑफ एनर्जी। मदर की वूम से जो एनर्जी निकल रही है, हाँ। उस एनर्जी से मैचिंग बच्चा आएगा। ठीक तो है। अगर आप बोले स्लम, तो स्लम में जो वुमेन है उसकी नेचुरली एनर्जी एक पर्टिकुलर फॉर्म की है। हाँ। तो वो जैसी उसकी एनर्जी है वैसा एनर्जी का बच्चा उसके पास आ जाता है। लेकिन अगर आप हमारे शास्त्रों को खोलेंगे, हाँ। तो जब राम जी को गर्भ में माँ कौशल्या को लाना था, तो राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ा था, इतना कठिन यज्ञ। माँ अंजना को जब हनुमान जी को अपने गर्भ में लाना था, तो माँ अंजना ने भी बहुत परिश्रम किया। माँ देवकी जब कृष्ण भगवान को गर्भ में लाई, तो वो जेल में थी और कितनी प्रताड़ना को उन्होंने सहा। उनका तो आई थिंक उनकी ही वाज द 8th चाइल्ड, ही वाज द 8th चाइल्ड। 7th चाइल्ड को मरते देखा है उन्होंने। मरते देखा उन्होंने, इतनी तपस्या करके उनको अपने हाँ। गर्भ में लाया। मतलब क्या, ये प्रूफ कर रहा है कि जब आपको बहुत पावरफुल सोल को लाना है, तो उस सोल को लाने के लिए आपके वूम की एनर्जी भी उतनी पावरफुल चाहिए। तो आपको तपश्चर्या के मार्ग पर चलकर आप होलिस्टिक क्लेंजिंग करके, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ऑल राउंडेड होलिस्टिक अपनी हीलिंग करनी होगी, अपना वेलबींग बढ़ाना होगा। और जब आप उसको अचीव करोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और आपकी जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का बच्चा आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे वॉलेट में 100 रुपए हैं, हाँ। और मैं मार्केट जाऊंगी, तो है। मैं 100 रुपए के हिसाब का ही सामान ले सकती हूँ, मुझे 101 रुपए का सामान नहीं मिलेगा। नहीं। बट अगर मुझे चाहिए कि भाई मुझे तो लुई विटॉन की बैग बड़ी अच्छी लगी जो 1 लाख रुपए की है, हाँ। तो मुझे 1 लाख रुपए लेके जाने पड़ेंगे, तो 1 लाख दूंगी तो मुझे 1 लाख का बैग मिलेगा। मतलब ये मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल दिया, हाँ। बट यही कॉरोलरी चलती है उस वर्ल्ड में भी, कि अगर मुझे बहुत पावरफुल सोल चाहिए तो मुझे भी अपने वूम के पावर को उतना बनाना पड़ेगा, तभी, बिकॉज choice is with the soul there, choice is not with the parent। मैं अपने बच्चे को चूज नहीं की हूँ, मेरे बच्चे ने मुझे चूज किया है कि यस, दिस इज द मदर, दिस इज द फैमिली, दिस इज द वूम, जहां पर मेरी जो लाइफ स्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली फुलफिल्ड होगी। मैं इस जीवन में ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ये वो परिवार है, ये वो माता है, ये वो पिता है जो मुझे ये अचीव करने में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो चूज करता है। तो जब राम जी की आत्मा होगी, तो राम जी की आत्मा कोई किसी एरे गहरे के तो घर पे नहीं आ सकती, नहीं सकती, तो उनको तो कौशल्य माँ जैसी माँ चाहिए, उनको राजा दशरथ जैसे पिता चाहिए, तभी तो वो आत्मा आएगी। तो आप भी अगर चाहते हो, मैं कोई भी, मतलब एक स्टैंडर्ड है, मैं जब भी कोई एक वुमेन से मिलती हूँ who wants to get into the path of pregnancy or is pregnant, मुझे कैसा बच्चा चाहिए? बेस्ट बच्चा चाहिए। तो what is the definition of best? हाँ, गुड तो डिफाइन ही नहीं होता, और हर माँ को बेस्ट बच्चा चाहिए। हाँ। बट बेस्ट क्या होगा? बेस्ट आपकी कॉन्शियसनेस से होगा। मेरा बेस्ट और आपका बेस्ट डिफरेंट है। तो मेरी कॉन्शियसनेस अलग है, मेरी वूम की एनर्जी अलग है, आपके वूम की एनर्जी अलग है, तो हमारी वूम की जो एनर्जी होगी हम वैसे ही सोल को अट्रैक्ट करेंगे। तो हियर कम्स योर आंसर कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है द सीड सिलेक्शन प्रोसेस, कि वो जो कंसेप्शन का पीरियड है, हमारा शास्त्र कहता है कि 1 ईयर बिफोर मैंने सोचा कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो प्रेग्नेंट होना है उसके 1 साल पहले से मुझे अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग कैसे करनी है, वो
इस पॉडकास्ट में तो बताना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इट्स क्वाइट, हाँ. बट फॉर दैट यू कैन रेफर टू द बुक. इट्स एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप मैनर. तो वो बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन्ड है कि हम कैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग को अचीव करें. हमें उसको अचीव करना होगा और अपनी वूम्ब की एनर्जी को बढ़ानी होगी, और तब हम उस सोल को कैरी करने के लिए, अब 1 लीटर दूध है, हाँ. वो आधा लीटर के गंज में तो नहीं आ सकता ना, वेसल में नहीं आ सकता ना. 1 लीटर के दूध के लिए 1 लीटर का वेसल चाहिए. नहीं, इतना और पावर तेज, वही तो, उस तेज को संभालने के लिए आई थिंक दिस नॉट लिटर, बट अगर मुझे आप नहीं, बोलो, नहीं, आई नो, आई लाइक इट, एक्सप्लेन कर रही हूँ. नहीं, बट जैसे मैं बोलती हूँ कि 100 वोल्टेज का बल्ब है, तो वो 0 वोल्टेज की ढक्कन में तो नहीं हो सकता है. तो हाँ. वो कैपेसिटी आपको, अगर 100 वोल्टेज का पावर चाहिए तो आपको 100 वोल्टेज का खुद बनना पड़ेगा, और ना लगती है उसके लिए. सो यू नो, आई मीन, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ माय ओन जर्नी. तो आई थिंक यू नो, हमारे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है अबाउट हमारी इंडियन रिलीजन्स का, जो हमारे हिंदुइज्म से चालू हुई हैं, हर रिलीजन में गर्भ संस्कार का कुछ ना कुछ तो है. ठीक है, तो एज अ सिख, यू नो, हमारे में गर्भवती के शब्द होते हैं. तो जब आई रिमेंबर मेरा टाइम आया एंड आई वांटेड टू कंसीव, तो मेरी मम्मी ने पहले ही, जैसे शादी को हो गए थे 6-7 महीने, 8 महीने हो गए थे, माई मॉम सेड कि अब चालू कर दो. ठीक है, तो हमारे में एक पर्टिकुलर शब्द है जो हमारे, मतलब बाबा बुड्ढा जी, जो वन ऑफ द, ही इज़ नॉट वन ऑफ द गुरुज, बट ही इज़ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड. उन्होंने समझो हमारे 6 गुरुओं को तिलक लगाया, 5 गुरुओं को तिलक लगाया है, गुरु का तिलक लगाया, तो मतलब उनकी काफ़ी महानता है. तो उनका जो शब्द, उन्होंने जो शब्द उच्चारण किया था वो 5th गुरु का है, बट उन्होंने कहा था सदगुरु साचे दिया भेज, कि सदगुरु मतलब गॉड सच्चे इंसान को, सच्ची सोल को भेजो. सदगुरु साचे, कि सच्चे को भेजो, और जो सोल में ये सब तो सारी क्वालिटीज़ लिखी हैं, कि ऐसी क्वालिटीज़ के माता पिता को जिस पे गर्व हो, मतलब गर्व हो, प्राउड फील करे, ये सबकी सुने, मतलब उनकी सारी वो क्वालिटीज़ उन्होंने लिखी हैं. सो वी हैड टू स्टार्ट, तो आई हैड टू स्टार्ट डूइंग इट. एंड सुबह उठ के नहा के, यू नो, मम्मी ने कहा था कि पानी रखो, खाए बगैर खाली पेट, जैसे आप ये करो, फिर उसको अमृत को पियो, और फिर जाके आपको खाना है, आपका दिनचर्या जैसे होगा वट एवर. तो मम्मी ने ये सब किया. फिर करते करते, एंड माई मदर, सो द मिनट आई कंसीव्ड, माई मदर, ये महीने में ये प्रेयर्स करनी है, ये महीने में ये करना है, ये एवरी मंथ शी हैड डन एवरीथिंग. शी सेड आपको बच्चे में हर गुण चाहिए, हर प्रेयर का अपना एक क्वालिटी है. सो शी सेड ये सब आपको करना है. थोड़ा टाइम निकला, माय मासी केम एंड शी इज़ लाइक, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रेयर है ना, द गुरु ग्रंथ साहिब इट्स 1430 पेजेस, पूरी की पूरी करनी है. तो मेरी मासी ने वो, उन्होंने भी डाल दिया लिटरली. मतलब ऐसा टाइम आया व्हेन आई वाज गोइंग टू डिलीवर, आई वाज टायर्ड ऑफ प्रेइंग. मैंने कहा मैं इतनी थक गई थी, मतलब लिटरली, यू नो, मतलब आई हैड टू गो फॉर अ सिजेरियन, क्योंकि मेरा ब्रीच बेबी था. तो डॉक्टर ने बोला 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, 5 दिन बाद भी कर सकते हैं, कुछ जल्दी नहीं है. मैंने कहा नहीं, कल करो. My logic was not कि I was like मुझे और पार्ट नहीं करना है. So tired. I was exhausted with just praying, इतना करके. But you know what? My child is now, मतलब he'll become 27 years old. जो मेरे बेटे में क्वालिटीज़ हैं, मतलब I am so proud of my son. At 24, he started his own business. You know, ये दूसरों को, और वो जिस तरीके से करता है, मतलब लोग उसको सुनते हैं, मतलब इतने, ऐसा नहीं कि बचपन से ही मैंने उसके अंदर वो क्वालिटीज़ देखी हैं, कि जो उसका मैं उसको एक एक चीज़ पूछ के बताती हूँ, मतलब पूछती हूँ कि चाहिए क्या करना है, एंड उसके आंसर्स आर अमेजिंग. वो जो उसकी सोच है वो शुरू से ही, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी है. एंड मुझे, मतलब सोचो, वो मेरा बेटा कुछ 4 साल का होगा, मेरी नानी मुझे कहती है तेरा बेटा तेरे से ज़्यादा समझदार है. वो 4 साल का है.
मतलब कैन यू इमेजिन, लाइक मैं जो अपने आप को बोलूँ, मतलब मेरा बेटा, मेरी नानी कहती है मतलब कि तेरा बेटा तेरे से ज़्यादा समझदार है, मेरी हंसी नहीं बंद हुई। मैं बोला 4 साल के बच्चे में आपको समझदारी दिखी, मेरे में नहीं दिखी। So That's so amazing. that but it's मतलब बहुत प्यार से बोला उन्होंने, बट हाँ, तो बिकॉज आई लव माई नानी, शी लव्ड मी अ लॉट एंड शी गेव मी लॉट ऑफ लव, बट वो इतने प्यार से, बिकॉज उनको वो चीज़ दिखी, एक स्पार्क। तो सोचो आप एक 4 साल के बच्चे में दिख रहे हो, और अभी भी मैं देखती हूँ उसको, मतलब ही इज़ अनयूजुअल। ऐसा बच्चा, मतलब उसमें तेज है, उसको जो बात करने का तरीका है वो सहज है, वो बहुत उछल कूद ये नहीं, अच्छा ही लाइक्स ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स ये लगता है, बट ही इज़, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मुझे वो लगता है कि आपने बोला ना, आपका वो आपके पास जितना है आपने वो लिया, एंड आई एम नाउ सो ग्रेटफुल कि मेरी माँ, मेरी मासी ने मेरी जिंदगी खराब की थी बट अब जाके मुझे उनके लिए इतना, आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरा बेटा अपने आप को कर लेगा। मुझे अब रोना नहीं है, तब रो लिया, अब नहीं रोना है। वही मैं सब मदर्स को कहती हूँ कि 9 months मेहनत कर लो, हाँ। आप वो 9 महीने में ना 90 साल का काम अचीव कर लोगे। हाँ। बिकॉज जो चीज़ वूम में हो सकती है, इन द वूम 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स। और वो कब से शुरू होता है ब्रेन डेवलपमेंट? 16th डे ऑफ कंसेप्शन, जब एक वुमेन को पता भी नहीं है हाँ। कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पहले से ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो गया है। और हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन क्रिएट हो रहे हैं। तो क्रिएट हर मिनट एवरी मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स आर गेटिंग क्रिएटेड। सो ऑर्गन्स बनने हैं, क्रिएशन होना है, इट्स लॉ ऑफ नेचर। एक बच्चे को जैसे डेवलप होना है, लॉ ऑफ नेचर उससे डेवलप होगा। लेकिन वो कैसा डेवलप होगा, वो मदर के फोकस पर है। अगर एक मदर पूरी फोकस्ड है, जैसे मैंने इस बुक में अपने मॉडल्स दिए हैं जो कॉपीराइटेड है नाउ अंडर माय नेम, सोनल्स होलिस्टिक मॉडल फॉर, सोनल्स इंटेलिजेंस मॉडल फॉर होलिस्टिक इंटेलिजेंस, उसमें मैंने पूरा PQ, IQ, EQ, SQ को डेवलप करने के पूरे मेथड्स दिए हैं। सो आई नो IQ इज इंटेलिजेंट क्वोशंट, EQ is emotional quotient, SQ is spiritual quotient. What is PQ? Physical quotient. अच्छा, physical quotient. Because आपका physical power भी तो है। हाँ। अब एक डांसर में कौन सा इंटेलिजेंस आप बोलोगे? Don't you think a dancer is intelligent? They are. Don't you think a sportsman is intelligent? They are completely. Don't you think a actor is intelligent? Yeah. तो वो इंटेलिजेंस फिजिकल इंटेलिजेंस है, बिकॉज वो उनका बॉडी ब्रेन कोऑर्डिनेशन कराता है। एक क्रिकेटर को एग्जैक्टली पता होता है कि किस एंगल में अपना हाथ रखूं, कि बॉल मेरे हाथ में आए, करेक्ट, कहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे हाथ में क्या प्रेशर होना चाहिए, हल्का रखूं, ज्यादा रखूं, इस तरह से रखूं, इस तरह से रखूं। एक बैट्समैन को एग्जैक्टली पता होता है कैसे बैट को टिल्ट करके किस एंगल से बॉल को मारूं कि वो सीधा छक्का हो जाए। एक डांसर को पता होता है कि कौन सी म्यूजिक मेरे कान में पड़ रही है, उसके हिसाब से मेरे हाथ की, मेरे चेहरे की, मेरे लेग्स की क्या मूवमेंट हो। एक एक्टर को पता होता है कि किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं, उससे मेरे फेस में किस तरह के एक्सप्रेशन होने चाहिए। ऑल दीज एक आर्टिस्ट को पता होता है कि किस तरह से मुझे अपने फिंगर्स को यूज करना है कि मैं इस चीज को ऐसे क्रिएट कर सकूं, ऐसे कलर्स भर सकूं। So this is all intelligence. This is physical intelligence. हाँ, correct. Brain body coordination. हाँ, but you know I've even seen, जैसे अभी you know आपने एक और चीज लिखी थी अपनी बुक में which I loved. So आपने ये कहा था कि there are 5 तत्व का शरीर है। आई थिंक आपने ये बहुत अच्छी चीज बोली, बिकॉज ये था कि वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। हाँ, तो आपने 5 कहा है कि इसमें जो कमी रह जाती, तो बच्चे में क्या कमी आ सकती है। एंड यू नो समथिंग, मेरे में जो प्रॉब्लम है, मुझे आई थिंक मेरे 4 धातु बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी नाइस, क्योंकि मुझे आई एम वेरी गुड, आई मीन आई नो कि आई एम वेरी, बट एक जो मैंने स्ट्रगल कर रही हूँ, बचपन से ही स्ट्रगल किया है, फिजिकल जैसे आप बोल सकते हो, इज इन माई अग्नि। मैंने जब आपका पढ़ा ना तो मुझे वो स्ट्राइक किया, क्योंकि अग्नि में कहा, आपने कहा था जठर अग्नि, आपकी जो डाइजेस्टिव है, फायर है, तो उसमें आपने लिखा था कि दे विल हैव प्रॉब्लम्स इन आईसाइट, दे विल, आई हैव ऑलवेज हैड आईसाइट इश्यूज, दे विल हैव प्रॉब्लम इन देयर डाइजेस्टिव इश्यूज। बचपन से ही माई डाइजेशन हैज़ बीन वेरी बैड, ठीक है, और मेरे को अभी जाके इतनी फूड एलर्जीज़ हैं,
सो यू वोंट इमेजिन आई एम, मुझे ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ, मैं ग्लूटेन थोड़ा सा भी नहीं खा सकती, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे जैसे जैसे शरीर में टॉक्सिन्स आ गए, जैसे आपने जहर पी लिया, वैसे ही मेरा ग्लूटेन का रहता है। मुझे लैक्टोज सेंसिटिव हूँ, तो मतलब दूध दही वगैरह भी नहीं खा सकती, तो उसमें भी मैं खाती हूँ बट बहुत लिमिटेड, ठीक है। आई हैव अ सॉल्ट इम्बैलेंस, मेरे शरीर में नमक कम हो जाता है। आप सोचो कभी कुछ हो गया आपको और कुछ नहीं, मैं लिटरली, आप मानोगे नहीं, मुझे सूप पीना पड़ता है। सूप्स को किसको पसंद है क्या है, बट मेरे लिए सूप इज़ अ ब्लेसिंग। मैं सूप में नमक डाल के गरम, जैसे होता है ना, बोलते डॉक्टर कहते हैं गरम लिक्विड में आप नमक डाल के लीजिए, और मेरी बॉडी में नमक कम हो जाता है। कभी ऐसे सुनिए चीज़ें। सो यू नो व्हाट, मैं जब आपकी बुक पढ़ रही थी मैंने कहा अगर मेरी मम्मी ने सोनल से ये सीखा होता, तो मेरी मम्मी ने ये सब किया होता, तो ये जो मेरी लाइफ की इतनी बड़ी, जैसे यू नो क्या बोलते हैं, मैं दुख नहीं कहती उसको, क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज़ को दुख नहीं, मैं हर चीज़ पे सुख ढूंढती हूँ। पर ये एटलीस्ट ये जो इतने इश्यूज है, यू नो, कि खाना पीना ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये थोड़ा मेरा लाइफ में थोड़ा इजी हो जाता, यू नो। पर बट हाँ, मेरा एक अलग से, मैं किसी को बोल रही थी, तो क्योंकि स्पेशली कहीं पे जाओ तो आपको ना सर्व करेंगे और जरूर ब्रेड आ जाएगी, यू नो, दे विल सर्व, वही सब होता है, तो वो तो चीज़ें मैं खा ही नहीं सकती हूँ। तो मुझे किसी ने बोला कि आप तो फिर आप खाते क्या हो? तो मैंने कहा देखो, आपका आप अपने आप से आपका डाइट प्लान बनाते हो, ठीक है, मेरे डाइटिशियन गॉड है उन्होंने मेरे लिए स्पेशल प्लान बनाया है। आई एम अ स्पेशल पर्सन, आप दूर हो, मैं नजदीक हूँ, तो वो मेरा देख रहे हैं कि ये क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्योंकि अपने आप से तो इसके मुंह पे जबान पे कंट्रोल है नहीं तो ही वाज लाइक, ऐसा पर्सपेक्टिव तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अमेजिंग। तो बोला हाँ ठीक है, दैट इज लाइक हाउ आई हैव टू थिंक ऑफ इट। बट हाँ, वो मुझे लगा कि आपने जो कहा कि दिस इज अ फैक्ट, आपकी जो आप कर रहे हो, सो आपके विद दिस कॉन्शियसली आप अपने बच्चे को इतने सारे गुण दे रहे हो, और जो एक नेगेटिविटी आ सकती है आप उसको निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली हर चीज़ अगर ठीक कर रहे हो तो वो बच्चा आगे जाके लीडर क्यों नहीं बनेगा? नहीं, होना ही है। बिकॉज क्या होता है, जब मदर एक, जैसे आपने ये पंचभूत की बात की, जो 5 तत्वास की बात की, तो उसके लिए हम चक्र मेडिटेशन करते हैं। इट्स एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल इन दिस बुक, प्लस इन माय यूट्यूब चैनल आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट चक्रास एंड आई हैव गॉट लोड्स ऑफ मेडिटेशन ऑन चक्रास। तो हम जब ये चक्र बैलेंसिंग के मेडिटेशन हम अपनी प्रेगनेंसी में करते हैं, तो हमारे चक्र भी बैलेंस होते हैं और हमारे 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो ये सब जब बैलेंस होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो कर्म जो हैं, हमारे कर्म डिसॉल्व होते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, बिकॉज ऑफ दोज कर्मास। तो जब ये कर्म ही रिजॉल्व हो जाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जब एक प्रेग्नेंट मदर मेडिटेट करती है, तो जब वो मेडिटेट करे तो उसके तो कर्म ठीक हो ही रहे हैं, बट उससे कई गुना ज़्यादा, बिकॉज दैट टाइम द चाइल्ड इज इन द रिसेप्टिव मोड। वो चाइल्ड बिल्कुल, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है बिल्कुल ओपन है, उसके माइंड में कहीं कुछ क्वेश्चन नहीं है, कहीं डाउट्स नहीं है, वो क्रिएटर से कनेक्टेड है और यहाँ पे सुन रहा है। यहाँ तो उससे क्या हो रहा है कि जब मदर इस तरह से स्क्रिप्चर सुन रही है, जब वो इस तरह से मेडिटेशन कर रही है, सेवा के काम कर रही है, जितने अच्छे अच्छे काम कर रही है, उनको मदर को तो जो बेनिफिट मिल रहा है ठीक है, बट वो मदर से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा बेनिफिट बेबी को मिलता है। क्योंकि मदर में तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं माइंड में, उनकी कॉन्शियस थिंकिंग कुछ स्टॉप कर देती है, बट बच्चा तो 100% भगवान से कनेक्टेड है। एन एग्जाम्पल इन योर बुक, क्योंकि देखो जब गर्भ संस्कार के बारे में बात आती है ना, तो सब लोग ओके दे गिव एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा, और कहते हैं कि जब नहीं कृष्ण कौन अर्जुन ने सुनाया था सुभद्रा को और अभिमन्यु ने गर्भ में सुना था। हाँ, तो कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है और कैसे जाना है, और कहते हैं कि जब निकलने का जो रास्ता था तब सुभद्रा सो गई, तो उन्होंने सुना नहीं। तो सब लोग यही एग्जाम्पल देते हैं, बट मुझे ये लगा कि आई डोंट थिंक सुभद्रा ने ये
इतना समझा होगा कि ये क्या है, सुभद्रा ने तो सीखा ही नहीं ना, सीखा ही नहीं कि भाई चक्रव्यूह में अगर सुभद्रा को भेजते थोड़ा ना चक्रव्यूह को भेद कर पाती थी, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, बट अभिमन्यु ने सब सीख लिया। हाँ। इसलिए कई बार क्या होता है कि मेरे पास बहुत वुमेन आती हैं, मैं बहुत सारी उनको एक्टिविटीज करने बोलती हूँ, ये करो, चेस सीखो, फॉरेन लैंग्वेज सीखो, ये स्क्रिप्चर पढ़ो, ये करो, वो करो। तो वो आती बोलती कि हम उतना सीख नहीं पा रहे हैं। मैं उनको कहती हूँ कि मैं आपको सिखा भी नहीं रही हूँ, यू आर जस्ट बीइंग अ मीडियम, आप सिर्फ एक चैनल हो, क्योंकि रियल लर्निंग कोई और कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, बेखूबी से कर रहा है। जब वो बाहर आएगा तो पता चलेगा उसने क्या किया। आप यू आर जस्ट बीइंग अ मीडियम, आप एक चैनल हो, तो जस्ट यूज योरसेल्फ एज अ चैनल। चाहे दिमाग मत लगाओ, नहीं सीख रहे हो मत सीखो, लेकिन फुल फोकस लगाओ। मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह, जैसे सुभद्रा बेपरवाह हो गई तो फिर नहीं सीख पाए थे, बट जब तक वो इंटेंटली सुन रही थी, चाहे वो सीख नहीं रही थी बट वो सुन रही थी इंटेंटली। तो इंटेंटली इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब मदर इंटेंटली इन्वॉल्व होकर एक्टिविटीज करती है, जो पूरे डिटेल में हमने बुक में एक्सप्लेन किया है, तो बच्चों का पूरा होलिस्टिक माइंड का डेवलपमेंट होता है। जो एग्जाम्पल था अबाउट, आई थिंक आपने बच्चे का नाम निशान था, हाँ, ओके। सो आपने कहा था कि मदर ने कहा कि मुझे तो ये श्लोका नहीं आते हैं, और बच्चा छोटी उम्र से ये श्लोक बोल रहा है, क्योंकि वो मदर क्या हुआ था कि वो पूरे टाइम उनके वहां पे 11 पंडित थे जो रुद्री का पाठ करते थे। वो बहुत, उनका पूरा परिवार शिवजी का परम भक्त था। तो सावन का समय चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो सावन के समय में उनके यहाँ 2 टाइम रुद्री का अभिषेक होता था। मॉर्निंग 6 बजे पंडित जी बैठ जाते थे, 6 से 12, और फिर वापस से 3 बजे से 3 से कि 2 बजे से शाम तक, ऐसे 2 टाइम वो होता था। मदर का रूम वहीं पे ही था जहाँ बैठ के मेडिटेशन करती थी। तो रुद्री की जो वो उच्च स्वर में चैंटिंग करते थे, वो जो चैंट्स जो थे वो मदर के कान में जाते थे। और बट उसको कुछ मालूम नहीं, वो अपना मेडिटेशन करती थी, उसका जो डेली रूटीन है वो अपना करती थी, एंड शी वाज वेरी पायस, शी वाज वेरी फोकस्ड, वो मंत्र को बहुत रिस्पेक्ट देती थी और सुनती थी। लेकिन जब बेबी बॉर्न हुआ तो इट वाज शॉकिंग कि जो बच्चा था वो छोटे उम्र से जब बोलना शुरू किया ना तो बुदबुदाता था कुछ, जब अभिषेक वगैरह करते थे, क्योंकि वो 40 दिन से ही पंडित जी के साथ पूजा करना शुरू कर दिया। मदर ने 40वें दिन, जब से होता ना कि भाई आज से पूजा शुरू कर सकते, शुद्धि हो गई बच्चे की, फ्रॉम द 40th डे पंडित जी के गोदी में दे दिया, और वो गोदी में ही बैठा ऐसा श्रृंगी ऐसे पकड़ता था और पंडित जी पूजा कराते थे। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसका मुंह ऐसे हिलता था। पंडित जी ने कान लगा कि सुने बोल क्या रहा है, तो वो शॉक्ड हो गए कि वो जो दूध दही के जो मंत्र है, वैदिक मंत्र, वो बच्चा वो मंत्र बोल रहा है, जबकि वो दूसरी बातें भी नहीं सीखा था। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला कि वो रुद्री, पूरा जो रुद्राभिषेक है उसे वो आ गया है, वो सारे पाठ, और वो जो पंडित जी ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाते हैं वो सब करते हैं, इनफैक्ट वो भी उस हाथ में करता था। और वो शॉक्ड हो गए कि भाई हम तो गए पूरे BHU में गए, हम सारी वैदिक पाठशाला में गए, और हमको एक एक श्लोक सीखने में कितने दिनों दिन लग जाते, और ये बच्चा तो पढ़ भी नहीं सकता, छोटा सा है 1.5-2 साल का, वो पढ़ भी नहीं सकता, वो खाली सुनता है हमें, और सुनकर तुरंत रेप्लिकेट कर देता है। Imagine. तो दे वर शॉक्ड कि कैसे हुआ। फिर उनको सबको ध्यान आया कि अरे ये तो पूरे गर्भ के पीरियड में अपनी मदर्स के थ्रू सारा सुन रहा था, क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठ के पूजा करते थे। तो अमेजिंग। तो बट और लेकिन अगर आप मदर के पास जाओ ना तो मदर वो मंत्र से रिलेट कर पाती है, वो बता सकती है हाँ भाई रुद्री के मंत्र हैं, बट वो एक मंत्र को चैंट नहीं कर सकती है, शी कांट चैंट। तो शी वाज जस्ट बीइंग अ मीडियम फॉर द चाइल्ड टू लर्न। क्योंकि आपको एक और बात समझनी हो, अगर हम साइंटिफिक एंगल से देखें तो हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन बच्चे का बन रहा है, माँ का नहीं बन रहा है। आप समझ रहे हो? सो मदर का ब्रेन डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, बट बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, इट्स ह्यूज। तो बच्चा जो सीख सकता है वो मदर नहीं सीख सकती है। अब सुभद्रा नहीं सीख पाई चक्रव्यूह में कैसे सीख घुसते हैं, बट अभिमन्यु ने क्या किया, पूरी 3D मैपिंग कर ली अपने माइंड में, पूरी मैपिंग करके गर्भ में ही सीख लिया कि कैसे कैसे घुसना है, क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली सुभद्रा का फोकस चला गया तो निकलने का एग्जिट मार्ग वो नहीं सीख पाई बेचारे। तो लर्निंग है हमारे लिए। तो जो गर्भ में बच्चे का 2.5 लाख न्यूरॉन डेवलप हो रहा है, दैट बेबी इज टेकिंग बर्थ विथ 100 बिलियन न्यूरॉन्स, द सेम अमाउंट दैट वी हैव।
हर जो नॉर्मल ह्यूमन Right. बीइंग है उसके एवरेज में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, तो बच्चा पूरा का पूरा 100 बिलियन लेके पैदा होता है। बस डिफरेंस ये उसकी नेचुरली वो छोटा है तो उसकी ब्रेन की साइज छोटी है, हाँ. तो धीरे धीरे बड़ी होती है। Correct. इस टाइम कहते हैं कि 80% अप्रोक्सीमेशन में कहते हैं कि 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूरल डेवलपमेंट तो पूरा हो रहा है, बस वो साइज छोटा है, वो साइज नेचुरली सर्कमफरेंस बढ़ेगा, तो हम 20% का एक लीवे दे देते हैं कि भाई 20% आई हैव सीन माई, मेरे अपने बेटे में देखा है, मैंने मेरी फैमिली मेंबर्स, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरी मम्मी ने बोला, सबको बोला हुआ है ये करो, क्योंकि अकेले मेरे पर तो नहीं कहर बैठा ना, मतलब बसा तो सब पे हुआ है। सो अब हम अपने वो हमारी फैमिली के जो हम बच्चों को देखते हैं, एक तो उनमें थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी, वो बहुत टैंट्रम्स करते हैं, वो भी किया है, तंग करते हैं, करने भी चाहिए, नहीं ना करते हैं तो होंगे उनका नहीं है, पर उनकी जो क्वालिटीज मच हायर। सो आई मीन आई सी माई सन, तो चेस में भी वो माहिर है, वो उसको स्पोर्ट्स भी अच्छी लगती है, फुटबॉल खेल रहा है, गोलकीपर था, सो फोटोग्राफी का शौक है उसको, मतलब जो जो चीज़ें कर रहा है एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसको बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है, फटाफट कर लेता है, उल्टा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, बीमार कम पड़ता, बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमार बहुत कम पड़ते हैं। एंड ही टेल मी आपसे ये नहीं होता, आपसे वो नहीं होता, ऐसे मेरे से नहीं होता है क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब ऑब्वियसली, तो उनको क्या लगता है कि आपसे ये भी नहीं हो रहा, बट आई हैव सीन हिज इवन विद मनी, उसकी ज़रूरतों के लिए पैसे जल्दी आ जाते हैं। लाइक जहाँ मैं स्ट्रगल करती हूँ, मुझे अपने आप को बनाना पड़ता है, मैंने अपने आप को किया है, पैसा उसके लिए मतलब उसकी ज़रूरतें आस्ते, जैसे कोई चीज़ बोलेगा फटाफट उसके लिए चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, मेरे पास नहीं हो, कर्माज उसके हल्के हैं और उसको बिकॉज मुंह में बहुत करेक्शन हुआ है, उसने उसको हर चीज़ जैसे आ जाती है। उल्टा एट दिस यंग एज, मतलब सोचो, ही लव सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट करना है अपने, एंड ही हैज़ अ मैनेजमेंट एडवाइजरी फर्म, तो उसके जो पार्टनर है वो मतलब काम कर रहे हैं, ये बंदा काम भी कर सकता है, हाई लेवल ऑफ सर्विस ही इज गिविंग हिज क्लाइंट्स, बट ही लव्स टू टॉक। अच्छा, इसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जाके किसी से भी बात कर लेता है, मैं 4 बार सोचूंगी बात करने के लिए, ये इसके होता है, हाँ उसमें क्या है, बात ही तो किया। तो इसीलिए है ना, मैं हर मदर को बोलती हूँ, जो आपने शब्द यूज किया ना बड़ा अच्छा लगा मुझे, कहर, तो 9 महीने कहर बरसा लो अपने ऊपर, क्योंकि वो 9 महीने का जो कहर है ना आपकी बाकी की लाइफ को सेट कर देगा। मैं बोलती हूँ 9 मंथ्स जी जान से मेहनत कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको ना डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाने, बिकॉज आपके बच्चे की इम्यूनिटी बेटर होगी। नहीं तो आजकल सारी माओं को मैं देखती हूँ घंटों घंटों खाली पीडियाट्रिशियन के बाहर में बैठे रहते हैं, तो आपको पीडियाट्रिशियन के वहाँ चक्कर बहुत कम लगाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि हल्का सा मौसम बदला और तबियत खराब हो गई, ये हो गया, बच्चे की इम्यूनिटी बेटर होगी। आपको क्या बोलते हैं, टीचर बार बार स्कूल में बुलाएगी नहीं, क्योंकि उतने कंप्लेंट्स नहीं होंगे। नहीं कंप्लेंट आते थे, क्योंकि मस्ती को था ना, that's fine, but what I mean to say is पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती वगैरह एक अलग बात होगी, बच्चों को होना भी चाहिए, मस्ती बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, they should do it। और फिर कृष्ण भगवान से ज्यादा मस्ती किसने की है तो फिर वो तो होना ही चाहिए। बट what I mean to say is कि जहाँ पढ़ाई वगैरह की बात होती है ना, दूसरे बच्चों को जहाँ 4 घंटे लगते हैं, वो बच्चा आधे घंटे में अचीव कर लेगा। स्कूल में ही सारे होमवर्क फिनिश करके आ जाएगा, घर में खाली खेलता रहेगा। उल्टा आई रिमेम्बर जूनियर केजी में था मेरा बेटा, मैं सीनियर केजी में था, एंड अगर तो ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ओके, ही वॉज लाइक, समझे कि तो उसको कोई बुली नहीं कर सकता था, ऐसा था। अभी भी उसका वो सीन 4 को जाके वो संभाल के ले आएगा। हाँ, तो आई रिमेम्बर लड़कियां थी ना, क्योंकि इट वाज अ कोएड स्कूल, यूसिन पोदार, तो CBSE में था, तो एक लड़की थी, तो उसकी किसी ने ना बाल खींच दिए, तो जाके वो खड़ा हो गया। तो you know what, they would come to him and he would like not talk to girls so often, but they would come to him जैसे अच्छा पता है उसने मेरी बाल खींचे, and this guy, he was senior KG, he used to go and fight over there, खबरदार जो इसके बाल खींचे। So he was literally like that savior mode, and ये उसका शुरू से ही बना, and literally my teacher would the teacher would come, they would tell me that हाँ, when Ishpreet is there class, सबसे ज्यादा मस्ती वो ही करेगा, लेकिन बाकियों को करने नहीं देगा कोई। So he had that, मतलब इमेजिन एक छोटी सी उम्र में लाइक ऐसी चीजें थी कि कोई आपको कबड्डी ही कम लाइक दैट, उसने कैसे किया। So he used to save people, he used to help, so he had all those। और ये छोटी क्वालिटीज कम वाली नहीं है, ये बहुत आजकल तो मतलब people disrespect women,
यहाँ पे he has always been so respecting of women. So that he got from the womb. हाँ, वो जो आप जो पाठ करते थे, जो सारी चीजें करते थे, Right. आपको नहीं समझ में आता था कि आप क्या कर रहे हो, Right. बट अब सब दिख रहा है. सब So दिख that रहा is है. गर्भ संस्कार. हाँ. गर्भ मतलब छुपा होना. Right, तो वो जो संस्कार जो छुप के दिया आपने, हाँ. वो सबसे पावरफुल है. Right. क्योंकि 80% ब्रेन डेवलपमेंट गर्भ में हो गया. बच्चा कुछ 10% जो है ना फर्स्ट 1000 डेज ऑफ द बेबी में होता है, यानी 2.5 से 3 साल. हाँ. और उसके बाद you're set. कुछ नहीं कर सकते. वेरी डिफिकल्ट. नहीं देखिए, इसमें मैं कहूँगी रोल ऑफ पेरेंटिंग. मुझसे कई बार लोग ये पूछते हैं कि गर्भ संस्कार कर लिया इसका मतलब पेरेंटिंग की जरूरत नहीं है. नॉट एट ऑल. पेरेंटिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने बेस्ट क्वालिटी बीज डाल दी, बेस्ट फर्टाइल लैंड है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन जंगली जानवर क्या अटैक नहीं करेंगे? क्या सुनामी नहीं आएगी? क्या बिना मौसम का बरसात नहीं होगा? Right. क्या अकाल नहीं आएगा? तो नेचुरल कैलामिटीज तो आएंगी ना. आई नीड टू प्रोटेक्ट. तो वैसे ही देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स अराउंड, तो मुझे तो प्रोटेक्ट करना है. और अगर मुझे पता है कि मेरा बीज इतनी मेहनत से इतनी तराश के है, तो मैं क्या उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैं ज्यादा वो करूंगी. तो जो गर्भ संस्कारित जो मदर होती है ना, वो पेरेंटिंग भी और अच्छा करती है, वो छोड़ती नहीं है. It's precious. Yes. That is like a very precious Yes. thing, and it's like, you know, आपकी वो that pride that you Yes. have in your child. So you can't get away parenting, but yes, parenting becomes joyful and easier. जब गर्भ संस्कार आपने किया है बच्चे का, तो easier होती है. जैसे डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, टीचर की वो सब नहीं सुननी पड़ रही है, पढ़ाई फटाफट हो जा रहा है. तो ये सारी जो चीजें, इट्स अ प्लेजर, इट बिकम्स अ प्लेजर. So हमारे ना एक सिख फिलोसोफर है, मतलब he is expired now, he is no more. ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, मतलब उनका तो मैं मतलब बचपन से मस्कीन जी. हाँ, बहुत सुना है मैंने उनके बारे हाँ, में. तो उनका ना एक चैनल होता था, मतलब एक आता था, ETC पंजाबी था ना, उसमें उनका एक आता था कॉल ज्ञान का सागर, ज्ञान दा सागर. तो ही वॉज, एंड वो ज्ञान के सागर ही थे. ओके. तो उनकी ना 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जो रेलेवेंट भी थी. तो उनके पास एक माँ आई. ओके. कहती है कि आप ना मेरे बेटे को अपने पास रख लो, कि आप इसको संभालो. तो उन्होंने बोला कि इसका रुचि है क्या सत्संग करना, या मतलब क्योंकि मेरे पास तुम दे रहे हो, मैं तो यही करता हूँ, तो इसकी रुचि है, तो शायद इसको एज एन इंटर्न रखना है, या इसको ना बचपन से संभालना है और समथिंग. तो कहती नहीं, रुचि तो नहीं है. तो बोला कि फिर इसको सेवा भावना है, इसको मेरे साथ सेवा करनी है, मतलब मेरे पास क्यों दे रहे हो? तो बोलती नहीं, सेवा भावना भी नहीं है. तो बोला फिर मेरे पास फिर दे क्यों रहे हो बेटे को कि आप इसको हैंडल करो? तो बोलती नहीं, बहुत तंग करता है कि मेरे से संभाला नहीं जाता है, बहुत तंग कर रहा है. ठीक है. तो मस्कीन जी के वर्ड्स थे, जो जमदूत तेरे को चमड़ा है तो मुझे क्यों दे रही है? ये तो तेरा है, बिकॉज तुमने नहीं कुछ किया, तुमने ऐसा बच्चा तुम्हारे पास आ गया, तुमने उसके साथ जब पैदा होना था तब तुमने कुछ किया नहीं. उनके ये वर्ड्स थे. तो अब जब वो तुम्हारे से हैंडल नहीं हो रहा है, अब तुम उसको बांटती फिर कि तुम ले लो. ठीक है. तो कहते हैं ये तेरा जिन भूत है. उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए, ये तेरा जिन भूत है, ये मेरा नहीं है. सो देन उन्होंने माँ के ऊपर, उनका एक्चुअली यूट्यूब पे भी है बाय द वे, उन्होंने माँ के ऊपर 2 डिस्कोर्सेस लंबे किए हैं. तो एक में कहते हैं, सो ही कॉल्स कि बच्चा जो है वो बीज है और माँ जो है वो धरती है. तो कहते हैं कि अगर सीड जो है वो बुरा भी हुआ, तो धरती अगर पावन है तो वो सीड अच्छा निकलेगा. लेकिन अगर सीड अच्छा भी हो, हाई क्वालिटी का हो, लेकिन अगर धरती खराब है, जो माँ है, तो वो सीड खराब हो जाएगा. सो ही हैज़ गिवन बोथ. तो उनका जो दोस्त है, एक में कहते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम है बच्चे के, सब माँ की गलती है. ठीक है. माँ ऐसे है, माँ वो है वो. सेकंड में बोलते हैं कि जो बच्चे में अच्छाई है वो भी माँ करके है. सो आई वॉज रीडिंग योर बुक एंड आपने आई थिंक भक्त प्रहलाद का बोला, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. आई वॉन्ट यू टू शेयर दैट विद पीपल प्लीज. भक्त प्रहलाद जो थे वो आज तक के सबसे परम भक्त हैं. अगर भक्त, इसलिए उनको भक्त शिरोमणि कहा जाता है. द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोटी अगर कोई हो सकता है तो भक्त प्रहलाद थे. और वो पुत्र किसके थे? वो पुत्र थे हिरण्याकश्यपु के, जो सबसे बड़े दैत्य, असुर दैत्य. सो
इट इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग कि सबसे बड़े दैत्य का सबसे परम भक्त पुत्र कैसे हो सकता है. द रीजन इज द मदर. क्योंकि जो माँ के आदू, जो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी और भक्त प्रहलाद की जो मदर थी, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी बिताई नारद मुनि के आश्रम में. नहीं और फुल टाइम जो बोला कि इट सीम्स जब वो प्रेग्नेंट थी, आई रेड द बुक, आई लव द बुक बाय द वे, थैंक यू सो मच. ओके, सो मुझे भी इतने एग्जांपल्स मिल रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो उन्होंने आपने कहा था कि इंद्र भगवान ने कहा कि इतने बड़े असुर का बेटा अगर हो रहा है तो इसको गर्भ में ही खत्म कर देना चाहिए. यस. हाँ, लेकिन नारद मुनि ने कहा कि नहीं, ये माँ इतनी पावन है और वो विष्णु की भक्त है, इसको नहीं करो कि बच्चा ठीक निकलेगा. एंड तभी उन्होंने अपने लेके गए. और पूरा प्रेगनेंसी उन्होंने, माँ के आदू ने पूरे प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करके बिताई और पूरे टाइम भगवान विष्णु का स्मरण करते गई. और जब भक्त प्रहलाद पैदा हुए तो नेचुरली ही वाज फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु. और हिरण्यकश्यप जो थे वो उनको अपना शत्रु मानते थे भगवान विष्णु को. तो जब हिरण्यकश्यप अपने बच्चे के पास जाए वो सिर्फ गुणगान गाए भगवान विष्णु का, तो वो जब जाए वो गुस्सा हो जाए. तो उन्होंने फिर उनको मारने की कोशिश की. और जब मारने की कोशिश की तो साक्षात भगवान विष्णु आए अपने अवतार लेकर और अपने भक्त को उन्होंने बचाया. नहीं, और हम होली जो मनाते हैं, जो होलिका का तो जो है वो उसी का तो है. का ही है. एग्जैक्टली. इस करके तो देखो हम सारे इंडियन होली मनाते हैं. So I mean I was so happy to read that कि यही चीज हो गई आपका जो है. और एक और एग्जाम्पल है हमारे स्क्रिप्चर में कि दैत्य और देवता कैसे पैदा हुए. तो ये भी स्टोरी मैंने शेयर की है कि कश्यप ऋषि जो हैं उनकी शादी हुई थी दो सिस्टर्स से, दिति और अदिति दोनों. यस आई लव इट, थैंक यू सो मच. वो इट्स एक्चुअली वेरी हार्ट वार्मिंग क्योंकि आप इतने उससे आप जब लिखते हो और फिर सामने वाला अगर उसको पढ़ता है और उससे वो कुछ ग्रहण कर पाता है तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत सफल हो गई. सो जब राजा दक्ष की जो दोनों पुत्रियां थी, दिति और अदिति, दोनों की शादी ऋषि कश्यप के साथ हुई. अब अदिति जो थी वो बहुत पायस थी. दिति जो थी वो थोड़ी सी उतनी पायस नहीं थी. शी हैड थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी. सो दिति हैड नेगेटिव एनर्जी, अदिति हैड पॉजिटिव एनर्जी. तो सेम कश्यप मुनि ने से दोनों को गर्भ धारण हुए. लेकिन दिति से पैदा क्या हुए? दैत्य. और अदिति से पैदा हुए सारे देवता. वाह. सो मतलब अगर आप लीनियज में जाए तो दोनों पुत्री किसकी? राजा दक्ष की. करेक्ट. एक ही पिता की दोनों पुत्री. दोनों के हस्बैंड कौन? एक ही. ये कश्यप मुनि. लेकिन एक से दैत्य और एक से देवता. तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस मदर में. धरती. मदर, दिति और अदिति, मदर में डिफरेंस है. बाकी उनका जेनेटिक लीनियज नहीं, बट वही जो उन्होंने बोला बीज और धरती. तो जो धरती है. अच्छा, बिफोर वी एंड, मेरा एक जो मैंने ये एक चीज नोट की थी. तो मैं किसी को जानती हूँ और उन्होंने क्या किया कि फुल फैमिली इज वेरी पायस. ठीक है. और ये आई वांटेड टू हाईलाइट. तो फुल फैमिली इज वेरी पायस और उनको था कि जब उनकी डॉटर इन लॉ एक्सपेक्ट करेगी तो उसको गर्भ संस्कार कराना है, ये कराना है. तो उन्होंने सब कुछ कराया, लड़की ने सब कुछ किया ये वो. लेकिन अब जाके वो बच्चा जो है ना वो बहुत चिड़चिड़ापन है उसमें, वो बहुत इरिटेट हो जाता है. ही इज़ ऑलवेज थ्रोइंग टैंट्रम्स. ही इज़ लाइक, तो उसकी जो दादी है वो कहती है कि हमने तो सब कराया, तो इसको बच्चे को क्यों नहीं हो रहा है. तो मैंने उनको फिर एक चीज़ बोली. मैंने बोला आपने कराया लेकिन आपने माँ के ऊपर ज़बरदस्ती करके कराया. अब क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम कि माँ का उस टाइम मन क्या था. देखो, हमने दोनों ने किया, हमने खुद से किया. अब उसको आपने इतनी जबरदस्ती डाल के ये करो वो करो, उसके अंदर कितना चिड़चिड़ापन आएगा. तो आपको माँ का भी तो मन समझना पड़ेगा. इमोशंस. हाँ. सो ऐसे अगर कोई आपके पास आता है कि ये लोग इसको करना चाहिए या द वुमन हरसेल्फ सेज कि मेरे को मन नहीं है. मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ. देखिए, बहुत स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीजें करो तो बहुत अच्छा. राइट.
अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते हो ना, तो मैं, अगर वो मदर है, मैं सामने वाला जैसा होता है ना उसको उतना ही, मतलब बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी थाली आप उतना ही परोस सकते हो, Correct. तो आप ओवरफ्लो नहीं कर सकते हो। तो पहले पात्र का जजमेंट हो जाता है हाँ. कि वो पात्र कैसा है, पात्र की पचाने की कैपेसिटी, डाइजेशन कैपेसिटी कितनी, उसके हिसाब से हम बातें करते हैं। व्हेन यू आर अ कोच, यू नो दैट। आई नो। सो अगर कोई मदर है, जैसे मेरे पास कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं एक बोलूंगी 10 करेंगे, जैसे मैं थी, उनको तो मैं पूरा उड़ेल देती हूँ, मतलब लगता है क्या नहीं बताऊं उनको। आई लव टू शेयर वॉट एवर आई कैन एंड दे डू इट, बट देयर मेनी जिनसे मेरे को समझ में आता है कि इनसे तो नहीं हो पाएगा। तो उनको मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि सिर्फ एक काम करना, खुश रहना, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट हैव हैप्पी इमोशंस। और घर वालों को बोलती हूँ कि आप कुछ दिमाग मत लगाओ, इसको खाली आप हैप्पी रखो, जो चीज में इसको खुशी मिलती है आप इसको हैप्पी रखो। तो क्या आधा बैटल वॉन हो जाता है। आई नो, क्योंकि चिड़चिड़ापन निकल गया, सब निकल गया, वो खुश है बस, बिकॉज इमोशंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर वो खुश रहेगी तो सोच हमेशा अपने आप पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव सोच होगी, मन में हैप्पीनेस होगा, तो बच्चा ओवर एंड ऑल अच्छा ही हो जाएगा। मतलब हम ऐसा एकदम जीनियस और वो सब नहीं सोच सकते, बट ओवरऑल तो अच्छा हो जाएगा, खुश तो रहेगा बच्चा। बेटर वो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कराने से तो उल्टा काम हो रहा है, एग्जैक्टली वो रॉन्ग हो रहा है। इसलिए मदर शुड नेवर बी फर्स्ट, इट शुड बी हर डिजायर टू डू। घर वाले ने गाइडेंस देनी है, मतलब बोलते हैं ना कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट ओनली द हॉर्स विल ड्रिंक द वाटर। तो हम क्या, हम रिवर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उस पानी को पीना तो मदर को ही है। आप जबरदस्ती उसके अंदर डालोगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा, नहीं, इट वोंट बी सूटेबल। आत्मा की ताकत होती है, हर इंसान की कैपेसिटी लेने की जो है वो अलग होती है। तो मैंने ये भी, अब मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, दे आर वेरी ट्रबल्ड, देखो उनकी माओ ने नहीं किया या वट एवर इट इज, बट काफ़ी ट्रबल्ड आते हैं और इतनी तकलीफें होती हैं। हमको तो होता है कि आप आओ, हम आपको कितना कितना दे देंगे, बट कैपेसिटी, उनका कैपेसिटी देखो, उनको आएंगे ना मेरे पास, बोलेंगे हमारा ना ये प्रॉब्लम है, अच्छा उसको आप ठीक कर देते हो, फिर इतनी बार ऐसा होता है कि वो उतने में तो 2 महीने 3 महीने में ठीक हो गए, उनको होता नहीं बस हम अब हो गए, हम हमारा इतना ही, हाँ, कि उनका वो एक चीज सॉल्व हो गई। अच्छा, कितनी बार तो दे हैव एक्चुअली पेड ऑल्सो, कि उनको 6 मंथ्स का मेरा पैकेज होता है, वो ले लेते हैं, ठीक है, एंड आई टेल देम कि आप आओ, नहीं हम बिल्कुल ठीक है, आपने हमको बिल्कुल ठीक कर दिया। उनकी वो कैपेसिटी ही नहीं है और कुछ करने की। ठीक है, फाइन, if they are feeling that they are good, they are good, half battle is won, and I just see, I was like, यहाँ पे अच्छा, मुझे अगर कोई होता, जैसे मैं जब लर्निंग करती हूँ तो मैं तो लिटरली उनको, मतलब अपने गुरुओं को, जैसे भी जो मेंटर्स हैं, उनको खुरेद देते कि और मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे हम देने को तैयार है, एंड पीपल आर लाइक, नहीं हम ठीक हो गए, हम बिल्कुल ठीक है, चाहे ये भी हो गया, हम वो भी हो गया, हमारा पैसा भी आ रहा है, मेंटली ऑल्सो आई एम बेटर, एंड दिस इज बेटर। So then I was like, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब प्रॉब्लम आएंगी तो फिर खुद ही आएंगे, but it was, अभी all going goody, it's okay, enjoy. So I tell you what, मेरे को हंसी क्यों आई, मैं बोला जहाँ आपका वो खत्म होता है, जिसका नहीं हुआ, they come to me. True, तो जरूरी है ना, it's very important because the whole cycle should continue, and क्या है, लर्निंग का और इम्प्रूवमेंट का तो कोई एंड नहीं है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो जब तक हम जी रहे हैं, till the time we are ticking, till the time we have taken the last breath, there is a scope of improvement, there is a scope of learning. So I am so happy there are people like you who is taking that initiative and ensuring कि भाई हम उस चीज को आगे बढ़ाते जाएं। That's so important. अभी तो मेरी बुक आ रही है, so I think I have to also say that. So my book is coming next month. तो थोड़ा अब पता है कि अब कितने महीने से ही कुछ चल रहा है, बट मतलब हर एक चीज का बनने का टाइम होता है। सो बोलते ना, माँ भी 9 महीने लगते हैं बच्चे को बनने के लिए, तो ये मेरी भी बेबी इन अ वे बन रहा है। सो बट हाँ, जो चीज़ अभी बन रही है लास्ट स्टेजेस में ही है, सो होपफुली अगले महीने तक आ जाएगी। एंड मुझे अच्छा क्या लगा, मैं जब आत्मा की ताकत के बारे में बोलती हूँ तो लोग मुझे ऐसे ब्लैंकली देखते हैं, ये क्या आत्मा की ताकत है और समथिंग लाइक दैट, पर मैंने आपकी बुक में पढ़ा द 4 S, एंड जब मैंने पढ़ा मैंने कहा ये एक इंसान है जो अपनी आत्मा की ताकत बढ़ाना जानती है।
you know, and I just love that about Thank it. you So so आपका much. I think आपने कहा था सेवा, स्वाध्याय, सेवा, स्वाध्याय, संकीर्तन और साधना, ये हमारे गुरु ने हाँ। सिखाया है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की पद्धति है वो 4 मार्ग पे है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। Right. तो ये 4 पाथ्स है टू अचीव Right. द अल्टीमेट। तो ये जो 4 पाथ है ये कैसे अचीव होते हैं? कर्म योग अचीव होता है अनकंडीशनल सेवा से। जब आप निष्काम सेवा करते हो तो आप कर्मयोगी बनते हो। Right. जब आप संकीर्तन करते हो और कनेक्ट कर भजन। लेते हो अपने आप को, यस और जिसको हम कहते हैं उनकी कीर्तन, उनकी हाँ। ग्लोरी में हाँ। बिल्कुल खो जाना, राइट, जो आपका शब्द होता है शब्द और होता है, सब हाँ, होता है। गुरबाणी शब्द यस होता है। यस यस, तो उनकी ग्लोरी में खो जाना, अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट कर लेना, Right. वो है भक्ति की पराकाष्ठा, दैट इज संकीर्तन। और फिर हो गया आपका ज्ञान योग। तो ज्ञान क्या? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या? स्वयं का अध्ययन। Right. भाई हमने ये बुक, मुझे क्या आप में सबसे अच्छी बात लगी, आपने बुक तो पढ़ा, हाँ। बट बुक पढ़ना और वाह करना तो एक अलग बात होगी, बट बुक पढ़ना, उसको इंटरनलाइज करना, वो एक सेकेंड स्टेप है। फिर इंटरनलाइज करके हाँ। अपने प्रैक्टिसेस में लेके आना, वो थर्ड स्टेप है। और प्रैक्टिसेस में लाकर उसका एक लिविंग एम्बॉडीमेंट बन जाना कि जो भी वृंद को देखे वो देखते बोले आत्मा की ताकत। हाँ। तो वो जो एक है, दैट्स द फाइनल स्टेज। सो दैट्स द स्टेप ऑफ स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, खुद का अध्ययन, खुद को समझना, खुद को निखारना, खुद को तराशना। भाई नॉलेज तो है एक्सटर्नल, बट उस एक्सटर्नल नॉलेज को आप इंटरनलाइज करके अपने आप को जब तराशते हो, दैट इज स्वाध्याय। एंड फोर्थ इज साधना, वो है राजयोग का मार्ग, कि अपने आप को साधो, हाँ, तपश्चर्या के मार्ग पे चलो। तो Exactly. पतंजलि योग सूत्र के पूरे 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, योग, प्राणायाम, ऐसे पूरे स्टेप्स हाँ। हैं जिसमें आपको साधना पड़ता है अपने आप को। नथिंग कम्स इन लाइफ फॉर फ्री, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। ये हमारे गुरु ने हमारे अंदर एकदम इनग्रेन कर दिया है कि मुफ्त का कभी कुछ नहीं मिलता। कुछ तो नहीं। आपको ये साधना के मार्ग में चल के, यम, नियम, योग, प्राणायाम, ये सब के मार्ग में चल के आपको अपने आप को साधना होगा। और जब आप साधोगे ना, तब वो जो प्रोडक्ट निकलेगा, बोलते हैं ना तप तप के सोना बनता है, तो सोना भी ऐसे नहीं बनता है, खूब तपना पड़ता है। तो ये साधना का मार्ग, तपश्चर्या का मार्ग, तपने का मार्ग, तो वो साधना। तो ये 4S प्रिंसिपल है, सेवा, साधना, स्वाध्याय और संकीर्तन। आई मीन देखा जाए तो हम एज अ सिख, यू नो, हमारे में हम सेवा करते हैं, हमारे गुरुद्वारे में लंगर चलता है पूरा टाइम, हम यू नो वहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, यू नो, और हमारे लिए वो आउट ऑफ द वे नहीं है। लाइक मैं बचपन से जब छोटी भी थी, तो अगर कल गुरपुरब है तो आज सब्जी कट रही है, आज आटा गूंद रहा है, तो हमारे को लेके आते थे। अच्छा, जब आप छोटे हो तो आपको बोलेंगे ये इसको यहाँ उठा के वहाँ रखो, और टफ वाले काम दिए जाते हैं। हाँ, अच्छा थोड़ा और बड़े हुए तो अभी सब्जी काट रहे हैं, प्याज कट रहा है, फिर रोटी बन रही है, अच्छा फिर लोगों को सर्व कर रहे हो, और ये सब तो सेवा ही होती थी। एंड हमारा सब तो, आई हैड इवन हैड अ पॉडकास्ट गेस्ट अनिल मताई करके, तो वो आर्य समाजी नहीं सॉरी राधा स्वामी के थे। तो बोलते थे हम 3 बजे उठ के जाते थे सेवा करने, तो हमारे लिए वो एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, कीर्तन हमारे गुरुद्वारे में होता था, ठीक है, हम लोग कीर्तन सुनते थे, हमारे पाठ है स्वाध्याय, कथा, मस्कीन जी वॉज लाइक ऐसे हमारे को पाठ सुनाते थे, ध्यान में बैठना है, आंख बंद करके बैठो। तो कहीं ना कहीं देखो हमारी जो इंडियन रिलीजन्स है ना, इन सब में ये लिखा हुआ है। हम बाहर को, हम वेस्ट को देखते हैं कि वो देखो क्या है, वो तो पैसा है, लेकिन अभी नाउ यू नो दैट रिवाइवल हैज कम। हमको रियलाइज हुआ कि हमने उनको सिर्फ कॉपी कर लिया, लेकिन ठीक है पैसा आया, लेकिन बाकी सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। यहीं पे तो यही तो जीवन का सार है, यू नो, और यही इधर से ही तो हमको ग्रो करना है। I totally agree. Totally, I think that is, so this is, we are, I'm very happy that you know people like you have come, जो अपने, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे इंडियन रिलीजन्स का जो है, और हर रिलीजन में लिखा है अबाउट गर्भ संस्कार, जिंदगी कैसे जीनी है, और उन्होंने उसको रिलीजन में डाल दिया है। यू नो, हमारे यहाँ पे नज़दीक महावीर मंदिर है,
तो रोज सुबह काफी लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे मंदिर के मंदिर जब तक पूजा नहीं करे। आई सी दीज स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो अपना धोती पहना हुआ है, एक ऐसा वो बांध के, जब मैं उनको जाते हुए देखती हूँ एंड इतनी खुशी आती है कि बचपन से ही वो एक संस्कार डाले हैं। जब उन लोग पर्यूषण वो करते हैं ना, तो यहाँ से ना वो रथ यात्रा निकलती है, मेरे घर के सामने से निकलती है। आई मीन इतनी खुशी आती है उसको देख के। हमारे भी जैसे जुलूस निकलते हैं, हम लोग लेते हैं वी हैव दैट, नगर कीर्तन होता है या उसको हम कहते हैं प्रभात फेरी कहते हैं, जब हम जाते हैं वी प्रे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं वो जाते हैं, हम उनको ना गाड़ी में बिठा देते हैं कि चलो आप यहाँ पे बैठो, यू आर सेफ, हम चल रहे हैं और हम कीर्तन कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। बचपन से ही वो डाला गया है, तो दे आर सो मच इनटू दैट। अभी जैसे गणपति आएगी, हम सारे बैठ के भी लोग एक एक के घर में जाएंगे दर्शन करने। सो इतनी जो कल्चर हमारा है एंड इसका रिवाइवल इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे को हमारी जो चीज़ है उसके अंदर सुख शांति ढूंढनी। हाँ, पैसा वेस्ट से आया, अब पैसा इधर भी ढूंढो। एक पैसा तो यहाँ पे था ना, भारत सोने की चिड़िया ही तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा रिचेस्ट तो इंडिया में ही था। एग्जैक्टली बट हाँ, लोगों को लगा कि हम वो करेंगे जो वो कर रहे हैं, हमको पैसा आएगा, बट अपना जो मेन है उसको तो छोड़ नहीं सकते। उसी के अंदर सुख शांति देखनी है और उसके अंदर ही हमारे को ताकत, तो यही हमारी ताकत का तो वो तो सोर्स क्या है, वो तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक Sonal, we had a very nice time and yeah, really enjoyed. Very nice and I'm so happy आपने ये time दिया हमारे को। Thank you so much for finding me capable enough and inviting me for your podcast. Very nice. That's really really thankful to you. Thank you so much. Thank you.